آپ کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں وہی جیسا جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. طبعا. تو ابھی جیسے ہم لوگ سنتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفل میں آتے ہیں، ہے نا بھائی کی خاطر بھی ایک یہاں پہ بھی ہے وہاں پہ بھی ہے، ہر جگہ. تو یہ کہاں سے بات ہے یہ؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کو وصال کے بعد ایسی زندگی عطا فرمائی جو جسمانی زندگی ہے، جیسے دنیاوی زندگی تھی. جہاں چاہیں وہ جا سکتے، ایسا نہیں کہ وہ یہاں موجود ہے ہم کہیں، وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں. اللہ نے ہم کو اختیار دیا، اس لیے کہ انبیاء اکرام کی روح جب نکالی گئی تو ایک تو پرمیشن کے ساتھ، ہمارے روح نکالنے کے لیے فرشتہ پرمیشن نہیں لیتے، نبیوں کی روح مبارک نکالنے کے لیے پرمیشن دیتا ہے فرشتہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح نکالنے کے بعد رکھا کہاں جائے؟ اگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے اس میں واضح طور سے لکھا ہے کہ انبیاء اکرام کی ارواح قبض کرنے کے بعد واپس اس کی جسموں میں ڈال دی جاتی ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ کفار کی روح سجین میں رہتی، اور کچھ یمن میں ایک کنواں ہے وہاں کچھ کفار کی روح رہتی ہے، کچھ زمین کے نچلے طبقے میں، اور مسلمان کی روح کچھ ان کے قبروں کے پاس، کچھ نیک روح ہے آسمانوں تک، کچھ زمزم میں، کچھ عرش تک جاتی ہے، اور کچھ جنت میں گھوم کے آتی ہے جیسے شہداء کی روح ہے. تو اب جنت نبی کے صدقے میں پیدا کی گئی، تو نبی کی روح جنت میں کیسے رکھے؟ آسمان بھی نبی کے صدقے میں پیدا ہوا تو نبی کی روح آسمان میں کیسے رکھے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ نبیوں کی روح کو کہاں رکھا جائے؟ تو کوئی ایسی جگہ بہتر نہیں جو نبی کے جسم سے بہتر ہو، کیا کہ یہ ارواحیں واپس ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہے. دیٹ مینس دے آر فزیکلی الائن ان دیئر گریوز، اپنی جسمانی زندگی کے ساتھ وہ قبروں میں زندہ ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ، اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اچھا تو یہ قرآن سے ذرا ثابت کر دیجئے کہ یہ جی آپ پہلے یہ ثابت کر، واپس جاتی ہیں. وہ تو میں نے کہا کہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا. امام تقی الدین سبکی کی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام پڑھ لیجئے، محدث شاہ عبدالحق دہلوی کی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب پڑھ لیجئے. ان سب میں آپ کو یہ حدیث کلیئر کٹ مل جائے گا. اور امام بیہقی کی کتاب جو دیوبندیوں نے بھی ترجمہ کیا ہے اردو میں، آیات الانبیاء، اس میں بھی یہ سب حدیثیں موجود ہیں. اور امام بیہقی جانتے ہوں گے امام بخاری سے پہلے کے انہوں جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن میں جیسا میں چجین اور کیا اور ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بول رہا ہے کہ چجینوں میں ڈال دی جاتی ہے جو وہ رہتے ہیں جو جنتی اور جہنمی، ہے نا. تو پھر ادھر پہ یہ سوال کہاں سے آتا ہے کہ کچھ وہ ہیں ادھر حدیث زمین کے نیچے حدیث میں میں جو قرآن جو بول رہا ہوں وہ قرآن کی گارنٹی ہے نا. حدیث تو ہے ہم مانتے ہیں لیکن ہم کو حدیث وہ صحیح ہے نہیں ہے وہ اس سے کیسے پتہ چلے؟ اچھا میری بات سنیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا رسول کی اطاعت کرو، اطیع اللہ اطیع الرسول ہے نا. اچھا اطیع الرسول جب ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے جب تک حدیث نہیں پڑھو گے کیسے عمل کرو؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے. کیونکہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے نا، سارے آرڈر دیا اللہ اچھا تعالیٰ. مجھے بتائیے یہ قرآن ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جی قرآن ہے کہ کیسے پتہ چلا؟ یہ ہمارے ماں باپ نے بتایا، ہمارے بزرگوں نے بتایا. یہ قرآن ہی ہے، کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، کیسے پتہ چلا؟ پڑھنے سے پتہ چلا. آپ کو پڑھنے سے کیسے پتہ چلا؟ آپ کو کیا گارنٹی کہ یہ قرآن ہے؟ بالکل کیونکہ وہ ترجمہ کیا ہے نا، آپ جیسے عالموں نے کیا نا ترجمہ، میرے بھائی پتہ چل رہا ہے نا کہ میں قرآن ہے بول کے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی صرف قرآن کی بات مانیں گے، نہیں ایسا نہیں کہا میں نے، قرآن اور صحیح حدیث کی بات مانیں. صحیح حدیث کی بات مانیں گے، قرآن اور حدیث کی صحیح حدیث کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے نا. اب قرآن یہ اصل میں قرآن ہے، یہی اللہ کا کلام ہے، ہم کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کیوں ٹھیک ہے آپ نہیں ہے. آپ بولے گا چلیے آپ بتا دیجیے، مجھے نہیں پتا. اسی کو قرآن مانے. اتنی سمپل سی بات ہے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، وہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. تو قرآن کو قرآن ماننے کے لیے نبی کی زبان کی ضرورت ہے، یہ تو حدیث پہ عمل کرنا ہوا. لیکن ابھی آپ کے تھرو ہم کو پتہ چلے گا نا عالم لوگوں کو. ابھی تو نبی نہیں، ابھی تو نبی کو گزر کے کتنا وقت ہو گیا نا، ابھی نبی کا دور چل رہا ہے. آپ نے یہ جو کہا نا کہ قرآن ہی گارنٹیڈ ہے، بالکل تو یہ قرآن گارنٹی بنی نبی کی مبارک زبان سے. نبی نے فرمایا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ آیت ہے، آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، اور نبی کہہ رہے کہ یہ میری حدیث، اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ تو نبی آپ نے سمجھے میری بات کو؟ نہیں تو میرے نبی نے یہ بھی تو کیا کہ گئے کہ میرے بعد لوگ میری باتوں کو پیش کریں گے تو تم میری باتوں کو کیسے جانچو گے؟ میں نے کہا ہے کہ قرآن سے جانچ لو نا، اگر قرآن سے مل جائے گی تو لے لینا، اور قرآن سے نہیں ملے گی تو سمجھنا میں نے نہیں کہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی کی گواہی کیا دے رہا ہے؟ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا نبی ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، اسے جو ہم کہتے ہیں وہی کہتا ہے. اللہ بول رہا ہے ABCD اور نبی بولیں گے ZXY جو حدیث میں مل رہا ہے، تو میں مانوں ہاں یا نہ؟ کیوں نہیں مانیں گے؟
کیونکہ اللہ اے بی سی بول رہا ہے اور نبی زیڈ ایکس وائی زیڈ بولیں گے تو کیسے چلے گا؟ آپ بتائیے نا، کیونکہ اختلاف ہو رہا ہے، آپ سمجھیے نا بات کو۔ بھائی سنیے، اختلاف ہو رہا ہے اس لیے کہ ہماری عقلیں کمزور ہے۔ اچھا، حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ کو بھر دوں، کیا ہم اور اب بھر سکتے؟ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹ بھرنے کے لیے علم تھا حضرت علی کو۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی۔ سب کا علم برابر نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تمام لوگوں کا علم ایک طرف، عمر فاروق کا علم ایک طرف، وہ وزن ہی رہے گا۔ سب کا علم برابر رہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری جتنی کیپیسٹی ہو اتنی ہم سے، اگر ہماری نظر میں ایک کنٹرڈکشن نظر آتا ہے تو یہ ہماری نظر کی کمزوری ہے، ہمارے علم کی کمزوری ہے۔ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، اسی طرح حدیث ہمارا بھی ایمان ہے کہ قرآن اسی طرح حدیث میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو قرآن اور حدیث میں تضاد کنٹرڈکشن نظر آ رہا ہے تو اسی لیے محدثین کی ضرورت ہے، وہ سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا یہ کہنا کہ حدیث میں یہ ثابت ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے نا واقعی کیا بول رہے ہیں؟ کہ بھائی اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ مرنے کا کس کو انکار ہے؟ ہاں سوال یہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ شہیدوں کو، شہداؤں کو آپ مردہ مت کہو، اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے نا۔ تو شہیدوں سے زیادہ مرتبہ نبیوں کا انبیاء کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی زندہ ہے، ہمارا بھی یہ ماننا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ادھر آگے کیا بول رہا ہے کہ وہ ہمارے پاس روزی بھی پاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، انہیں کس طرح کھلا رہے ہیں، کس طرح عیش و آرام میں لگ رہے ہیں۔ تو یہ متشابہات ہو گئی، تو ہم کیوں یہ سوچیں کہ دنیا میں سب گھوم رہے ہیں، سب جگہ یہ آپ سوچیں نا۔ نہیں یہ متشابہت کیسے ہو گئی؟ یہ تو میرا سوال ہے آپ سے۔ ہاں بتائیے، اچھا کس طرح زندہ ہے قرآن میں ہے دیا ہوا ہے کہ بھائی اس طرح تو زندہ ہے۔ قرآن میں جب ہے وہاں تم لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب تمہیں شعور نہیں ہے تو تم اس کے پیچھے پڑے کیوں؟ تو میں تو نہیں پڑھا ہوں، آپ ہی بتا رہے ہو۔ تمہیں شعور ہی نہیں ہے تو کیوں پڑے ہو؟ کیوں پڑے؟ اللہ نے ان کو ایسی زندگی میں دی ہے جو پڑھا ہوں۔ ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو عالم برزخ، قبر کی زندگی جو ہے، عالم برزخ اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا عالم برزخ کے سامنے ایسا ہے جیسے ماں کا پیٹ۔ اس کا ماں کا پیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا ہوتا ہے۔ اب عالم برزخ کے سامنے ماں کا پیٹ اتنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوری دنیا، اتنی بڑی دنیا ماں کے یا کہ عالم برزخ کے سامنے ماں کے پیٹ کی طرح ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ وسیع جگہ پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اس طرح عالم برزخ مومن جو ہے دنیا سے جب جاتا ہے تو تنگ جگہ سے وسیع میدان میں آ گیا۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوری دنیا کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائے کا دانہ۔ آپ نہیں مانو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ آپ کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، اسی طرح کے اقوال بخاری نہیں مانیں گے، مان رہے ہو نا؟ نہیں لیکن آپ جیسا جس میں بول رہے نہیں، غوث اعظم کی بات نہیں مانیں گے نا، اس لیے میں نے کہا نہیں برا نہیں ماننا، بات پوری سنو۔ یہ ہم ہیلدی ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں، ہم بھی Healthy. ہیلدی ڈسکشن۔ تاکہ کیا ہے کہ دلوں میں رنجش نہیں رہے، اب بھلے مجھے آپ بتائیے۔ اپنے عقیدے پہ رہو، بھلے میں اپنے آپ عقیدے پہ مجھے رہوں، یہ بتائیے، ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا پوری دنیا کو اور قیامت تک ہونے والی چیزوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ سنی ہے یہ چیز آپ نے؟ نہیں سنی؟ آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے، آپ کو سنا، آپ کو ریفرنس دے دیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، اب پوری دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے نبی، یعنی پوری دنیا کو ایسے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی، اور وہ بھی کیا دیکھ رہے ہیں؟ قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ پوری دنیا اس دنیا میں رہ کر ہتھیلی کی طرح ہے، اب عالم برزخ میں دنیا ہی ماں کے پیٹ کی طرح ہو گئی تو اور کتنی چھوٹی ہو جائے گی؟ تو نبی اور آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب آپ کا کہنا کہ ہر نگ جگہ پہنچنا، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کو جانے کی ضرورت نہیں جب پوری چیز ان کے سامنے تو پھر سبحان اللہ، تو پھر جب موجود تو پھر وہی تو پھر کیوں بولنا کہ بھائی ہمارے محفل میں آ رہے ہیں، یہاں پہ محفل چل رہی ہے، یہاں بھی آ رہے ہیں، وہاں پہ محفل، سب جگہ ایک ساتھ ہوتی ہے نا ساری چیزیں۔ کسی مستند عالم دین سے آپ نے یہ سنا کہ نبی یہاں موجود ہے؟ پرانا بابا یہ کون عالم ہے؟ کوئی ایسا عالم بتا دو، مستند عالم جن کا ایک مقام ہو، وہ یہ کہے کہ نبی یہاں موجود آئے ہیں میری محفل میں، یہ بتا دو، ہم ان سے ڈسکس کریں گے۔ چلیے آپ ٹھیک ہے، نہیں کسی کی بات کو سن کے مت کہو بھائی۔ نہیں تو میں یہ بولتا ہوں ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں، بہت اچھی، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ یہ بات بول رہے ہو، لیکن کیا ہے کہ اکثر لوگوں کے منہ سے یہ سن رہا تو مطلب کہاں سے یہ بات پھیل کہاں سے رہی ہے؟ اور یہ جو ہمارے جیسے جو نارمل لوگ ہیں یہ سمجھ نہیں پا رہے، کنفیوز ہے کہ بھائی کیا ہے۔ آپ ہمارے پاس آئیے نا، ہم سمجھاتے ہیں نا، جیسا آپ آئے نا ہمیں خوشی ہوئی۔ آپ کو جو نا ایسی کوئی عوام میں بات آئے نا اس کو لے کے آپ اچھالیے مت،
नहीं उछाल ले रहे हैं सुननी ऐसा अरे पहले किसी अच्छे आलिम हमने से तो मुलाकात अरे करें। भाई हम किसी दूसरे को क्यों गलत बोले जब हम आप खुद ही इस्लाह पे आए होंगे तब हम दूसरे को वही मैं कह रहा हूँ, अभी आपने मेरे सामने आके बोला कि लोग ऐसा कहते हैं कि नबी इस महफिल में खाना खाने के लिए आए, कौन ऐसा कहता है? ऐसा कहने वाला कोई मुस्लिम आलिम बताओ। हाँ, नबी तशरीफ लाना चाहे तो जरूर ला दे, कोई शक नहीं है, लेकिन ये कहना कि अभी अभी यहाँ आए हैं, ये कोई मुस्लिम आलिम से बता दो, इसके कोई आलिम इस तरह बात वही आती है ना। देखिए मतलब नबी आ सकते हैं, ये इसी के ऊपर तो हमको एतराज है। एतराज करने के लिए आपको या तो कुरान से दलील देनी पड़ेगी, हाँ, तो कुरान से तो हम दलील दे रहे हैं। ये अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जिस तरह आपने बोले आप उस टो में क्यों लगे कि हम उन्हें किस तरह रख रहे हैं, है ना? तो ये टो में तो आप लगे हुए हैं कि वो आ रहे हैं, वो किस तरह जिंदा है, आपका नाम वो क्या है भाई? तबरेज। तबरेज भाई, अब कुरान से पहले बताइए कि जो आपने कहा ना कि आप कुरान से दलील दे रहे हैं, कौन सी दलील आपने दी? ये बताया ना आपको, आयत पढ़ो, आयत। कौन सी आयत? कि भाई हाँ कि भाई शहीदों को आप मुर्दा मत कहो, हाँ। है ना? वही बताया। तो आपने बोला आप ला तशऊरून, हाँ। तुम्हें इसका शऊर नहीं तो है। आप तो हम शऊर, आप शऊर बता रहे हैं ना मुझे कि वो कब्रों में बराबर जिंदा है, वो सुन रहे हैं। वो तो कुरान अल्लाह ने फरमा दिया ना, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, वो अल्लाह के नजदीक हयात है, तो इसमें और तफसील की क्या जरूरत है? अल्लाह के सबक- नजदीक ना, हाँ, तो क्या अल्लाह- मेरी बात सुन रहे हैं अभी? तो हम क्या अभी दूसरों के नजदीक हयात है? हमें भी तो अल्लाह ने हयात दी है। नहीं, अभी हमारी जो बात हो रही नबी सुन रहे क्या? आप ये बताइए। बिल्कुल सुन रहे हैं। देखिए ये तो यही अच्छा, इसी के ऊपर ऑब्जेक्शन अगर है। नहीं सुन रहे तो आप मुझे दलील दो, नबी नहीं सुनते, हम हाँ, दलील देते। हाँ मैं बताता हूँ। सूरह मुजादिला आयत नंबर 6 में आप देखेंगे क्या है? कि जब 4 लोग सरगोशियां करते हैं तो उसमें 5वां अल्लाह होता है। ठीक है, और अगर जो अपना क्या बोलता है, अगर 6 लोग सरगोशियां करते हैं या 6 लोग बैठे हैं तो उसमें 7वां अल्लाह होता है। तो ये आयत बराबर तशरीह कर रही है कि कितने भी लोग आ जाए, 100 आ जाए, 200 आ जाए, उसमें एक और एडिशन कौन होगा? अल्लाह होगा, जो सारी हमारी बातें सुन रहा है। आपका अकीदा है कि नबी यहाँ पे बातें सुन रहे हैं, लेकिन मेरा अकीदा है अल्लाह के सिवा, हम लोगों के सिवा और कोई नहीं सुन रहा है। ये मेरा अकीदा है। तो इसको आप वो जो आयत है, जैसे आप कह रहे हैं कि 5 में छठा अल्लाह होता है, बेशक। तो इससे ये साबित होता है कि अल्लाह ने नबी को सुनने की ताकत नहीं दी? क्या ये साबित होता है इससे? तो आप मुझे नहीं, आप मुझे बताइए, आप खुद आप माशाल्लाह इतने आलिम हैं, सारी चीजें हैं, तो ये आपको ये नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा ही उसमें जान, जिस तरह आप बोल रहे हो कि तुम इस टो में क्यों लगे हुए हो, तो टो में आप लगे हुए हैं कि भाई नबी नहीं हो सकता है? ये आप ये बताइए ना। भाई वही मैं कह रहा हूँ, आपका ये कहना कि 5 में छठा अल्लाह सुनता है, तो क्या इससे ये साबित होता है कि दूसरा कोई नहीं सुन ठीक है, सकता? इससे ये साबित होता है कि नबी सुन रहे हैं। नबी के सुनने वाली हदीसें हम बताते हैं, हदीस है, देखा कुरान भी बताते हैं हम आ रहे हैं कुरान के बाहर, क्योंकि अल्लाह ताला क्या नबी क्या कह रहा है कुरान से साबित। कि अल्लाह बोल रहा है कि मैं साबित करता हूँ। ए नबी अगर इस कुरान से तुम हटे तो समझो गए। ठीक है, अल्लाह ताला नबी को बोल रहा है। क्यों? सूरह अहज़ाब की आयत में आइए, हाँ, सूरह उससे पहले आइए, अल्लाह ने फरमाया वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम लोगों की अपनी रगे शह से भी ज्यादा करीब है। बेशक है ना, अल्लाह अल्लाह ने बोल रहा फरमाया है ना। बेशक। यही अल्लाह ने कुरान में फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों के जान से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। इसको हाँ, अब इसको किस तरह ले मैं आप बताइए। चलिए, मैं समझ गया सर। नबी वाला आपने क्या समझा इससे? मैंने ये समझा कि नबी तुम्हारी जान से ज्यादा हक रखते हैं। अगर नबी के ऊपर कोई आंच आती है या नबी के खिलाफ कोई अगर कोई भी वो इंसल्ट करता है, कुछ करता है, तो तुमको फौरन उसके लिए खड़े होना है, क्योंकि तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। तो अगर तुम उनके लिए जान भी दे दो तो वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं है, क्योंकि नबी तुम्हारे पर सबसे ज्यादा हक रखते हैं, क्योंकि उनका इतना एहसान है, उन्होंने इतनी सारी कुर्बानियां दी, सारी चीजें अल्लाह ताला ने कुरान में आयत उतार दी, ये ज्यादा हक रखते हैं। बहुत अच्छा लगा, करीब। आप पढ़े लिखे हो, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, अब मुझे बताइए, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम में जो अल्लाह ने फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मशक्क़त में पड़ना नबी को गिरां गुजरता है। तो हमारी तकलीफ नबी को गिरां गुजरने के लिए नबी को पता नहीं, तो कैसे गिरां गुजरता? नहीं, मुशक्कत का मतलब क्या है पता है? मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला बोल रहा है, ए नबी इनका ईमान लाना, अगर तुम्हें इतना आप सब्र करिए, ठीक है ना, इनका ईमान लाना आपको बहुत ही तकलीफ दे रहा है ना, तो आप सब्र करिए, ठीक है ना। नहीं लाना। हाँ, ईमान ना लाना, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तो क्या तुम अपनी जान को हलाक कर दोगे? सूरह कहफ में ये कि अगर ये ईमान नहीं लाते। आयत को मैंने अन्नबी औला पढ़ा तो आपने जवाब दे दिया। अब मेरी दूसरी आयत का जवाब दो ना। हाँ बताइए। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, मुसलमानों का, लोगों का तकलीफ में पड़ना नबी को तकलीफ होती है, और मुसलमानों की भलाई के ज्यादा चाहने वाले नबी, ठीक है, और बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मुसलमानों के लिए मेहरबान रऊफ भी हैं, रहीम भी। मुझे बताइए रहमत कैसे करेंगे?
रहमत कैसे करेंगे? वो आयत में और प्रेजेंट कॉन्टेक्ट के लिए जिस टाइम नबी हयात थे उस टाइम जो वो दलील दिखा तो कि ये आयत उसके बाद एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए applicable तो है। नहीं, बिल मुमिनीना का लिखा है ना, बिल मुमिनीना रऊफ रहीम, तमाम मुसलमानों के लिए रऊफ रहीम। मुसलमान का इतलाक, तो इसका मतलब अगर वो प्रेजेंट है तो आप मुसलमान नहीं कह सकते अपने आप को। अगर आप मुसलमान कलमा पढ़ते तो आप मोमिन हुए कि नहीं? तो मोमिन है तो नबी हमारे लिए रहमत हुए कि नहीं? तो ये तो कुरान एप्लीकेबल तो हुआ। कुरान तो खुद बोल रहा है रहमतुल आलिम बना के भेजे गए हैं, तो रहमतुल आलिम आलमीन में भी सब आ गए कि नहीं? हाँ बिल्कुल सब आ गए। अच्छा, हम भी आ गए। अगर नबी नहीं सुन सकते तो रहमतुल आलमीन का अल्लाह ने क्यों फरमा दिया कुरान में? सुनने का कोई थोड़ी है। इसलिए फरमाया सुनने का कॉन्टेक्स्ट अल्लाह ने फरमाया बात को समझो। एक जगह सही बात हो रही है, हंसने की बात कोई नहीं है भाई। नहीं नहीं नहीं, हंसने की बात नहीं क्या वो उन्होंने कुछ बताया, हाँ इन्होंने कुछ बताया। चलो हम दोनों को डिस्कस करने दो। ये अल्लाह यहाँ अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों के लिए रऊफ रहीम, और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में तमाम आलमीन के लिए रहमत। मुझे बताइए, एक आदमी ना हमारी बात सुन सके ना समझ सके इंतकाल के बाद, तो आलमीन का लफ्ज़ अल्लाह ने डाल के क्या गलत किया? माज़अल्लाह, क्या अल्लाह पर ब्लेम करते हो? रहमत का मतलब क्या है? रहमत करने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि मैं आपकी ज़बान को समझूँ। अगर आप अरबी बोल रहे हैं, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, मुझे अरबी नहीं आती, आपको उर्दू नहीं आती, आपकी ज़बान समझूंगा नहीं, कैसे आप पर रहमत करूँगा? हाँ सही बात, नहीं कर सकता। अच्छा, ज़बान मैं समझ लिया, लेकिन आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी ताकत मेरे पास नहीं है, कैसे मदद करूँगा? लेकिन आप लोगों का तो कहना ना कि अल्लाह के रसूल हम गायब जानते हैं। हाँ। अब इससे तो ये हमारा कहना नहीं है, अल्लाह का कहना है। हाँ हाँ सुभान अल्लाह का कहना है, आप इसको इनकार अल्लाह। कर जबान में क्यों फिर आप डिफरेंस करें कि वो अगर अरबी नहीं आती तो फिर अरबी नहीं तो मैं नहीं समझ हमारी सकते आपकी हो। बात कर रहा हूँ। जब आदमी गैब समझ सकता है ना कोई, हाँ। तो फिर सब कुछ समझ सकता है वो। तो वही तो मैं कहने जा रहा हूँ हाँ। कि रहमत करने के लिए ज़बान जबान का में बीच में वो नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं आती मतलब। अरे भाई, मैं नबी की यहाँ बात समझाने के लिए अपनी बात कर रहा हूँ। जी। अगर मैं आपको मदद करना चाहूँ तो आपकी तकलीफ को समझे बगैर कैसे मदद करूँगा? मैं रहमत नहीं कर सकता। ज़बान समझ लिया लेकिन मैं आपसे दूर हूँ, अगर आप तक पहुँचने की ताकत नहीं तो कैसे मदद करूँगा? अच्छा, पहुँचने की भी ताकत है लेकिन मैं जिंदा ही नहीं हूँ, कैसे मदद करूँगा? जब अल्लाह ने आलमीन के लिए रहमत बना दिया तो इसका मतलब नबी को अल्लाह ने मौत के बाद ज़िंदगी भी बख्शी है, तमाम उलूम भी अता फरमाए, मदद करने की ताकत भी अता फरमाए, दूर तक पहुँचने की ताकत भी अता फरमाए। अगर नहीं तो रहमत का मतलब क्या हुआ? तो क्या अल्लाह को हम ब्लेम करते कि अल्लाह ने नबी को रहमत बनाकर गलत कर दिया? आप रहमत का मतलब इस तरह ले रहे हैं कि भाई किस कभी तरह लेते हैं? आप बता दो। रहमत अल्लाह ताला ने नबी को भेजा, इसीलिए भेजा ताकि इनको सही रास्ता बताएं, तो वो रास्ता बता दिया ना। बता और दिया। अल्लाह जिस तरह आपने बोले ये जो मैं पढ़ रहा हूँ यही है, कुरान किस तरह समझा, तो यही रहमत है कि कुरान नबी के ऊपर उतार दिया, अब इसका प्रोटेक्शन भी हो गया, इसमें कोई चूचरा नहीं हो सकता, तो अब इसको पढ़ो और इसके ऊपर अमल करो। अच्छा, तो सिंपल बात कुरान में है। अल्लाह ने ये क्यों नहीं लिखा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन फी हाज़ा ज़मान? हाँ। अब इस जमाने के लिए रहमतुल लिल आलमीन, इसके बाद वाले आने के लिए आप रहमत नहीं, ये तो नहीं फरमाया अल्लाह। इसलिए जमाना नहीं लिखा ना अल्लाह ताला ने, तो नहीं लिखा तो मतलब सबके लिए आ गया। क़यामत तक के लिए ना, क़यामत तक के लिए रहमत, पर्टिकुलर क़यामत तक रहमत होने के लिए जिंदगी होना जरूरी है ना। और वो जिंदगी को मैं अच्छा, तो फिर इसका मतलब आप जो औहदे जो पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे, बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहूंगा दूंगा, तो इसका मतलब आपने अल्लाह ताला को तो रिटायर ही कर दिया, क्यों है क्या ना? क्यों कैसे रिटर्न? नाउजुबिल्लाह, क्यों? क्योंकि सारे काम तो नबी से हो रहे हैं, तो फिर अल्लाह की क्या जरूरत है? भाई, अल्लाह ही ने फरिश्तों से काम। अच्छा, क्या अल्लाह ताला डायरेक्ट अमल हमारे हमको जन्नत जहन्नम भेज नहीं सकता डायरेक्ट? बिल्कुल कर सकते हैं, वो फैसला हो चुका है, नबी ने कह दिया है। कह दिया है ना। हाँ, बिल्कुल। तो फिर क्यों फरिश्ते लिखते हैं? क्या अल्लाह को पता नहीं फरिश्ते लिख के भेजेंगे तभी हमारे लिए, आपको पता हमारे चलेगा? तो जब साहबा ने पूछा कि जब ये फैसला हो हमको चुका है बताएंगे तो क्या क्या अमल करते हो, नबी ने क्या मेरे कहा भाई, कि आप अमल करते मेरे रहो, भाई, क्योंकि फरिश्तों को अल्लाह ने ड्यूटी सौंपी है कि नहीं? सौंपी है। बारिश बरसने की ड्यूटी सौंपी है कि नहीं? रोजी की सौंपी है कि नहीं? जब सौंपी है तो क्या इसका मतलब ये है कि अल्लाह फारिग हो गया इसलिए फरिश्तों को सौंपी है? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं तो आप मैं यही बात हमने नबी की कही तो कह रहे हो कि क्या अल्लाह फारिग हो गया है? नहीं, अजीब सी बातें कर रहे हैं। अजीब सी बात नहीं, जब मैं अगर दुआ मांगू तो मैं क्या क्या करूं? मैं आप या रसूल अल्लाह मदद बोलूं नहीं, या अल्लाह मदद बोलूं? एक टॉपिक आप बताइए। एक टॉपिक नहीं, भाई, टॉपिक बोलिए। हमारा पहला टॉपिक ये है कि नबी हयात है कि नहीं। डोंट चेक द टॉपिक। हाँ, तो भाई अभी हमने तो हर मदद के लिए आ रहे हैं, आपकी बात मैंने समझ गया पूरी तरह से, नबी मदद को आ सकते हैं, पहले कहीं ये भी पहुंच साबित सकते हैं, पहले आप ये साबित करो कि नबी जिंदा नहीं है। बस तो है ना साबित? क्या? अल्लाह ताला बोल रहा है ना सूरह जुमर में, नबी के लिए क्या है नबी तुम्हें भी मरना ही नहीं, मरना तो इंतकाल हो चुका मरना है। हाँ, अरे भाई, मरने का इनकार किसने किया? अच्छा, कभी माँ मरेंगे मतलब सब एक साथ। मेरे बात सुनो, कुरान में कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत है कि नहीं? बिल्कुल है। क्या मतलब हुआ? हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है, बस मौत का मजा चखना है, दोबारा कहिए। मौत का मजा चखना है। चखना है। चखने के लिए आदमी अगर जिंदा नया रहे तो चखेगा कैसे?
तो जिंदे थे ना, तो चख लिए ना, अरे तो इंतकाल कर गए ना, और क्या इसमें क्या सेंस अरे बनता है? समझो यार, कुरान को समझो। अच्छा, समझाइए, कुल्लू आप नफ्सिन, समझाइए। कुल्लू हाँ। नफ्सिन, हर नफ्स को, क्या मतलब हर रूह को हाँ, हर रूह को, मौत का मजा चखना है। बिल्कुल। रूह मौत का मजा मैंने अगर पानी का ग्लास मुंह में रख के मर गया तो चखना कैसे पाया गया? टेस्ट पाने के लिए मुझे जिंदा रहना जरूरी है कि नहीं? नहीं, आप बात समझा नहीं। आपकी बात नहीं समझे, इसलिए कि आपने अपने माइंड को लिमिटेड कर लिया है। नो, नॉट लिमिटेड। लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर लिमिटेड हो तो यहाँ बैठा मैंने अभी लाइम का जूस पिया, हाँ। उसका टेस्ट मालूम करने के लिए, चखे। चखने के लिए जिंदा मैं अभी है। जिंदा हूँ तभी उसका टेस्ट बता सकता हूँ। जी, बिल्कुल। अगर मुंह में रखते ही मर गया तो कैसे टेस्ट बताऊंगा? मौत बता सकते, सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं फौरन मर गया तो टेस्ट समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। तो इसका मतलब आपके हिसाब से मेरे भाई, चखना, बात- मौत को चखना है बात मुझे। पूरी करने दो। जितने भी अगर मर रहे हैं, अगर मैं मरता हूँ बात पूरी करने दो। आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी वहाँ करने कर रहे दो। अल्लाह ने फरमाया हर रूह को मौत का मजा चखना है। तो मौत का मजा चखने के लिए रूह का बाकी रहना जरूरी है। अच्छा, अगर आप कहेंगे कि मौत से आदमी खत्म हो जाता है तो चखना नहीं पाएगा, आप खुद कुरान के खिलाफ जा रहे हो। समझे? आयत को दोबारा पढ़ो। कुल्लु नफ्सिन, हर रूह को, दाइकतुल मौत, मौत का मजा चखना है। चखने के लिए रूह का बाकी रहना जरूरी है, और रूह को फना नहीं है। क्यों फना नहीं है? ये बात सरकार से पूछा गया, यसअलूनका अनिर रूह, ए नबी, रूह, अल्लाह ने फरमाया नबी आपके पास रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह अल्लाह के हुक्म से है, और अल्लाह के हुक्म को मौत नहीं है, फना नहीं है, अल्लाह के अम्र को फना नहीं है। तो रूह का बाकी रहना, नहीं, यहाँ पे ये बोला गया है कि मेरी रूह बात जो है- पहले नहीं, पूरी आप कर गलत बोल रहे लीजिए, हैं। मेरी बात पूरी करने दीजिए। रूह का बाकी रहना जरूरी और रूह को फना नहीं। अब मौत का मतलब ये हुआ रूह का जिस्म से अलग होना। बिल्कुल ठीक है ना? सही। जिस्म को मौत आती है, रूह को मौत नहीं आती। रूह मौत का मजा चखती है। इसलिए मैंने शुरू में बताया इमाम बैहक़ी की हदीस से, और दूसरी हदीस किताबों का नाम भी मैंने लिया, जज़्बुल क़ुलूब लिया, जज़्बुल क़ुलूब लिया, और शिफ़ाउस सिक़ाम लिया। इसी तरह इमाम बैहक़ी की किताब का नाम लिया। इन तमाम हदीसों में लिखा है कि अम्बिया किराम की रूहें वापस उनके जिस्मों में लौटा दी जाती है। मौत का नाम है सेपरेशन ऑफ द रूह फ्रॉम द बॉडी, और नबियों की रूहों को दोबारा जिस्म में डाल दिया जाता है, तो वही दोबारा दुनियावी जिंदगी हो गई जो हमारे शऊर से बाहर है। अच्छा, एक शहीद, उसकी जिंदगी आप शऊर से बाहर बोलते हो और फिर उसकी तशरीह भी करते हो कि इस तरह जिंदा है। तो तशरीह अल्लाह ने फरमा दी ना। नहीं नहीं, अब ये आपका कल्चर बिल्कुल में एकदम कुरान के खिलाफ जा रहा है। कुरान के खिलाफ आपके हिसाब से जा रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। चलो हम आपको बताते हैं। बल अहयाउन, वो अल्लाह के नजदीक जिंदा है। कैसे जिंदा है इसका तो में शूर नहीं। अल्लाह ने बोल दिया ना, खत्म हो गई बात। तो जब अगर जिंदा है ये तो कंफर्म है ना? हाँ बिल्कुल। कैसे जिंदा है नहीं पता, जिंदा है ये कंफर्म है ना? कैसे? तो तो आप तुम बता रहे जिंदगी हो। को मानते नहीं ना यार, मसला तो वहाँ नहीं, है। तो आप, लेकिन आप तशरीह किस बात की कर रहे हैं भाई मेरे? ये सुनिए ना भाई, आपने कि क्या कहा? इस तरह जिंदा है, आपने क्या कब्रों कहा? में जिंदा है, मेरे वो भाई, वापस दे दी जाती तबरेज़ है, भाई। ये सब अल्लाह ताला ने कर। मैं एक बात कर रहा था तब्रेज़ भाई से, जब हजरत की बात खत्म होती है तब आपकी बात कह दीजिए। खत्म हुई तभी बीच तो में नहीं, करने के आप बाद बीच में हम बोलते लोग को हैं। समझ में नहीं आपने पहले और एक बात हजरत, एक बात, पहले उसका अरबी में आयत पढ़ी है, फिर बाद में उसका चलो, वो ट्रांसलेट नाम कीजिए। मैं अरबी का एक सवाल चलो नहीं। चलो ठीक है। मैं तो खाली अरे ये भी वो अंग्रेजी पढ़ के आने वाला। चलो मैं भी अंग्रेजी अंग्रेज नहीं। देखो भाई, पढ़ते भाई हम। दूसरों को नहीं, चलो, इजाजत नहीं अरे सुलेमान भाई आप सब्र कीजिए। ठीक है, आपने जो आयत पेश की, जब यू आर कंट्राडिक्टिंग नाउ, आप अपने कॉल से खिलाफ जा रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। एक जगह आप कह रहे हैं कि जिंदगी यकीनन है, ठीक है, लेकिन हमें शऊर नहीं है, तो जिंदगी तो कबूल करते हैं ना। दूसरी जगह आप कहते हैं इन्नका मय्यतुन, आपको मौत का मजा चखना है, इसका मतलब ये है कि जिंदगी नहीं है। आप खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने कॉल से। तो चाहे तो कुरान की बात कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है, आप मैं क्या कर रहा हूँ? आपके हिसाब से, तो कुरान मेरे अगर, हिसाब से नहीं, अच्छा कुरान की बात आप कंट्राडिक्ट मानते हैं? बिल्कुल नहीं, ये आप बोल रहे हो। कंट्राडिक्ट नहीं मानते तो मुझे दोनों का मतलब, एक जगह अल्लाह ने फरमाया ये जिंदा है, दूसरी जगह फरमाया कि तुम्हें मौत है, और तुम्हारे हिसाब से मौत का मतलब ये कि जिंदगी है नहीं। अब मैं बोलूँ? तो तुम एक तरफ कहते हो जिंदगी नहीं है, दूसरी तरफ कहते हो मौत है। क्या ये है? चलो ठीक है, अब मैं बोलूँ? बोलो। अल्लाह ताला बोल रहा है कि नबी हमारे शौदा और नबी हमारे पास जिंदा है। वो अल्लाह के पास जिंदा है किस तरह, लेकिन दुनिया में जिंदा है क्या? वो कुरान में है क्या? मैंने कहीं? कब कहा अब दुनिया बताइए। में जिंदा है? मैंने कहा कि दुनियावी जैसी जिंदगी उनको हासिल है। देखिए, अब फिर आपके बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या कंट्रडिक्शन है? जैसे आपने बोले कि दुनिया जैसे- की तरह जिंदा, अरे मेरे भाई, आप तशरीह कर रहे हो, इस- आप क्या बोले कि शऊर नहीं है, तो फिर क्यों? मेरे भाई, ये बताइए ना। आप पहले किसी आलिम को लाइए, बात करेंगे। आपको बात करने नहीं आती। अच्छा, मैंने क्या कहा? अंबिया किराम की रूह दोबारा जिस्मों में डाली जाती है, उनकी जिंदगी दुनियावी सी जिंदगी जैसी है, एक बात। और इस हमारा अकीदा ये है कि जहाँ चाहे वो जा सकते, इसलिए कि पूरी दुनिया उनकी नजर में ऐसे है जैसे हाथ की हथेली। ठीक है, ये हदीस है ना? हदीस है। ठीक है, हाँ। तो अब ये हदीस है,
चलो मैं भी मान लेता हूँ ये हदीस है, तो हम लोग के अंदर इतने इख्तिलाफ क्यों है, क्यों इतने इख्तिलाफ फिरके पैदा आप फिरके लोगों ने किया है ना, मैंने किया हूँ। आप लोग ठीक है, जिसको आप जैसे- फॉलो करते हो उन्होंने किया है। मैं आपको अल्लाह ये और बात- रसूल को फॉलो करता हूँ, अल्लाह को- मैं किसी फिरके से नहीं आया हूँ। अगर अल्लाह और रसूल को फॉलो करते हैं तो नबी को हयात मानी। मान लो ना हयात, कहाँ लेकिन मान रहे हैं? दुनिया में मदद के लिए अभी- आकर के अभी- मैं ये बिल्कुल नहीं मान अरे सकता। अभी- कुरान में नहीं बोला गया है अभी कि आप भाई कह रहे- जिस तरह आप बोल रहे हो कि रूहें जिस्मों में डाल दी जाती अभी है, आप ये भी कह रहे हो हयात मानता हूँ और अभी कह रहे हो कि मौत भी मानता हूँ। अल्लाह ताला बोल रहा है हयात मौत- कुरान की बात मान रहा हूँ ये ना मैं। भाई बस सब घबरा गए हैं, ये नहीं बता पा रहे। आप बताइए। सामने ये इनका कहने का आपको बता रहा, आप भी नहीं समझ रहे थे। ये इन्होंने कहा कि मर गए और फिर हयात है ना, तो दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, है ना, साहबाओं के साथ थे, बीवियों के साथ थे, तो अल्लाह फरमा रहा है नबी तुम्हें भी मरना है, तो अल्लाह के नबी साहबी के बीवियों के साथ सामने इंतकाल हुआ, मर गए ना, ठीक है ना, मर गए, मरने के बाद हयात है। मर गए नहीं बोलो, मरने के बाद हयात है। आप भी तो बोले इनका मैयत उनका मरना है, मान से रहे मर गए, नबी की शान में बेअत है। बेहद भी मैं माना, इंतकाल का लफ्ज़। लेकिन एक इंतकाल का नॉर्मल बात। लफ्ज़। अच्छा सुनिए, इनका बोलने मतलब आप नहीं समझे कि दुनिया में हयात थे, फिर इंतकाल हुआ, साहबाओं ने दफन किया, मानते हो ना, तो वो बोल रहे हैं कि मर गए और फिर मरने के बाद हयात भी है, जिंदा। आप समझ में आए, तो हम बस तो क्लियर हो वही गई कह बात, वही बात हो रही। हम तो आप समझ रहे क्यों नहीं, दो बात बोल रहे हो, दो बात का बोल रहे हो? ये वो बात भी समझ एक ही गए, बात लेकिन अब अभी अभी सवाल ये वो है एक ही बात कि कर इस रहे हैं कि दुनिया में दुनिया में इंतकाल हुआ, जब एक ही दफनाए गए, दुनिया बाद में फिर इंतकाल जिंदा हुआ, अल्लाह के बाद में जिंदा है ना, तो जब बाद में जिंदा है तो हम तो यही कह रहे हैं कि कब्र ही में जिंदा है। भाई वो आलम में बरज़ख की जिंदगी, उसका उसका शऊर नहीं है ना, वो कैसी बात कर सकते हैं? आप तो वो बोल रहे बाकायदा आ रहे दुनिया में, सबको पता है कौन क्या कर रहा वही है। तो मैंने कहा कि आप किसने ऐसी बात कही कि यहाँ आ रहे खाना खा रहे, किसने कही? वो तो मैं पूछ रहा हूँ आप आपसे। क्या है कि आप क्या है कि- मैंने ये कहा जहाँ चाहे जा सकते हैं। आप अपने अपने आगे स्टूडेंट है, आपका वो एजाज मुझे यही बोले, यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है वहाँ भी है बोला। आप तो बता रहे हैं कि भाई आ सकते हो, क्या- अलग क्या बात बोले है। आप? ये तो पूछो हमने भी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, वो बताया हुआ है, वो तो हो गया उसके बारे में मेरी बहस हुई तो मैं तफसीर पढ़ा था, तो मैं बोला कहते मैं भी नबी मोमिन की जान से ज़्यादा करीब है। सेकंड आयत मुझे कोट किए थे कि जब 3 लोग सुन रहे तो चौथा अल्लाह का, और जब 4 लोग सुन रहे तो 5वां अल्लाह है। तो मैंने तफसीर पढ़ा था, मैं बोला कि वो कुफार मुशरिकीन थे जो 3 और 5 में प्लानिंग करते थे कि मुसलमानों को कैसे झुटलाया जाए, चिढ़ाया जाए। तो वो आयत इसलिए नाजिल हुई थी कि जो प्रोफेशनल प्लानर्स रहते थे वो 3 या 5 में होते थे। वो तो वो मुसलमान जब चिढ़ाते थे मीन्स कोई मुसलमान जा रहा है तो आपस में आंखें मचोल करके चिढ़ाते थे। तो ये आयत नाज़िल हुई, जो तुम 3 लोग में प्लानिंग कर रहे हो मत भूलो कि चौथा अल्लाह है। अगर तुम 5 लोग में प्लानिंग करे तो छठा अल्लाह। इससे ये साबित नहीं होता कि नबी नहीं जानते। और सेकंड आयत हज़रत क्या नाज़िल हुई, जो हुजूर ने उनको स्टॉप किया, रुका, सुनो कि ऐसे मत करो, तो किस हद तक के लिए वो रुके, फिर से वही चुड़ाना स्टार्ट किया। तो सेकंड आयत नाज़िल हुई, क्या तुमने नहीं देखा कि कुछ अरसे तक वो रुके फिर वही स्टार्ट किए? तो सेकंड आयत भी पढ़ो तब समझेगा ना। नहीं समझे था। अच्छा, अब आपकी और हमारी बात एक जगह मिलती है कि नबी को जिंदगी, दुनिया में जिंदगी के बाद मौत का मजा चखे और अभी जख्म ज़िंदा। फर्क इतना है कि आप ये नहीं मानते कि नबी जहाँ चाहे जा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ये आप नहीं मानते। हम इस बात को मानते हैं, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि नबी नहीं सुन सकते, एक दलील दे दीजिए कुरान से। नस से हो गई, कुरान से दे दीजिए कि नबी नहीं सुन सकते इंतकाल के बाद। नस से और एक निज़ाम पूरी होने दीजिए। कुरान वो मायने वाला से ज्यादा नहीं। दोनों लोग कौन है? गाड़ी मायने वाला क्या, तर्जुमे वाला तुम्हारा लोग तर्जुमे वाला नहीं आप क्या है, हम सिर्फ तर्जुमे का आया है तो क्या गाड़ी में है ना, तो आज इब्राहिम करे आता हूँ। ये 2 मिनट ठहरो ठहरो ठहरो। नमाज स्टार्ट काम हमें देखो मैं नमाज पढ़ के आता है 3 बजे तक। हाँ 3:30 बजे आता है, 3:30 बजे आता है, 3 बजे
वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका लराफ़िक़। ठीक है, अभी हमारी और आपकी बात एक जगह मिलती है कि ज़िंदगी दुनियावी, उसके बाद मौत का मज़ा चखा, कब्र में यानी आलम बरज़ख में उनकी ज़िंदगी है। फ़र्क इतना है कि आप ये नहीं मानते कि नबी सुन सकते। एक दलील कुरान से दे, आप खाली माना नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी यहाँ बात ये भी हुई कि तर्जुमा बहुत सा गलत भी है, तो मैं बिल्कुल देखा, बहुत अच्छी बात है। कहाँ कुरान से आपका तर्जुमा नहीं, यानी आप आप गलत जो है। तर्जुमा फॉलो करते वो ना, वो गलत है। यही बोले कि सही, तो मैं सही भी देखना चाहता हूँ। अगर तो कुरान मजीद को देखने या तलाश करने या ढूंढने तक के बाद मुझे थोड़ा कब्र का हमारा जो तीसरा सवाल पूछा जाएगा उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। माँ कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस शख्स के बारे में तोड़ क्या कहते? क्या कहते? तर्जुमा वाला लो, कुरान है तर्जुमा वाला है कराड़ी हाँ मस्जिद में से ले लो। और इस शख्स के इनके बारे में तो इनके हाज़र रजुल लिखा है। इस शख्स के बारे में क्या कहते हो? तब हाजिर नहीं तो इस शख्स के बारे में कैसे परिशुद्ध? नबी अगर हाजिर ना हो तो ये कहना कि इनके बारे में, ये तो नहीं कहा कि उनके बारे में तुम क्या कहते थे, ऐसा नहीं ना, इनके बारे में क्या? हाँ, हाजिर रजुल, हाजिर, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। आप एक आयत पेश कर दो, नबी नहीं सुन सकते, एक आयत बस। हाँ, वो आयत पेश नहीं करना जो कुफ्फार और बुतों के ताल्लुक से नाजिल की है। नबी नहीं सुन सकते, ये आयत दिखाओ। हाँ, पार और बुतों के ताल्लुक से मतलब वही तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जो दिखाएंगे ना, और मुझे मालूम है वही दिखाएंगे, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अच्छा, आप दिखाएंगे, मेरे को तो मालूम भी नहीं, आप मेरे को बता दें तो जो तर्जुमा आप मंगा रहे हो ना तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, जो कल आपको जब पता है क्या बताएंगे तो आप ही बताइए कौन सी आयत तो वही तो बताएंगे। मैंने कहा कि आयत का मफहूम बता दो, मैं सर आयत बता देता हूँ। आपके ज़हन में कौन सी आयत है जो आप तर्जुमा मंगा रहे हो? क्योंकि आपको तो अरबी पढ़ना अगर आता आपको नहीं। नहीं, अगर आप आपको अरबी नहीं उर्दू से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं तो आप तर्जुमा क्यों मंगाए? क्या दिखाने मंगाया? वो तर्जुमे से बताऊंगा दूसरी आयत। आप तो बोल रहे हैं ढूंढेंगे कैसे आप जब पता नहीं तो? नहीं, आप जो बोल रहे हैं मेरे को मालूम है, आप बताइए ना। पता है मेरे कि भाई, कुरान के तर्जुमे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये कहा ना, आपने ये कहा वो ना, आयत मत बताइए जो मेरे को मालूम है, आप मेरे को कोट करिए, फिर मैं बताता हूँ सेम है कि दूसरी। मेरे भाई, अब मैं वही जानना चाहता हूँ, आप बताइए ना। हाँ, नहीं, आपने जो कहा ना, पहले ये कहा कि मुझे नहीं मालूम, दूसरा ये कह रहे कि तर्जुमा मंगाओ मैं दिखाता हूँ, मालूम नहीं तो कैसे ढूंढोगे? अरे भाई, आप जो बोले वो नहीं मालूम है। आपको मालूम है तो मेरे पास दूसरी आयत है। उसका मफहूम बता दो, मैं आयत बताता हूँ। तुम्हारे पास जो आयत है अभी एक और बात आ गई, वो आप क्लियर करेंगे तो मेरी तो मैं आप ये कहेंगे कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये आयत आप पेश करेंगे कि आप ऐ नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। आप ये सोचे, मैं ये नहीं बता नहीं बताया, अच्छा किया। बहुत अच्छा, तो क्लियर हो गई ना। तो मुझे एक रिसर्च करने का मौका मिल गया। पीछे मुझे एक और रिसर्च करने का मौका। आप आगे पीछे क्यों हो रहे हैं बोलने में कि नहीं? मैं अरे आपसे मैं बोला बताइए, आप बता दीजिए और मैं भी बता दूँ। अब वो आयत नहीं है ना, इसका मतलब आपके जहन में कोई आयत है? कोई आयत, वो आयत बता दो। आता नहीं पढ़ना। नहीं तो जो आयत आपके जहन में उसका मीनिंग तो बता दो। सलेमान भाई, उनको बोलना है, बोलना आ गया फरहान, माशाल्लाह, दीजिए। यहाँ दो, बेहद है कुछ यार नहीं वहाँ दो। अच्छा, मैं नीचे बैठता हूँ। नहीं बैठे कुरान शरीफ, अरे कुरान शरीफ नीचे कैसे ऊपर बैठे? अजब तो करना है कुरान शरीफ। इधर पानी ये पानी ले लो अंदर, बाद में बराबर लागोगे। आप दिखाइए कुरान शरीफ, कौन सी आयत आप पढ़ रहे हैं? कुछ तकिया दे यार। पहली बात तो ये तो मैं पूछना चाहूंगा कि इसका ये सही तर्जुमा है कि नहीं? सही आप पहले आयत पढ़िए, तर्जुमा सही हो गलत हो बाद में आयत दिखाइए। नहीं, फिर बातें खत्म हो जाएगी, इसलिए कि आप तर्जुमे से बात करें। कंजूली नहीं, आपके हिसाब से सही है। क्या बोल रहा हूँ, पहले क्लियर होने के बाद बात, इसलिए कि फिर आप बोलोगे कि तर्जुमा कंजुल ईमान है ना, ये तर्जुमा सही है, हम मानेंगे, सही है, हम मानेंगे। क्योंकि अभी वही बात हुई ना अपनी कि भाई तर्जुमा बहुत अलग अलग करते ये हैं, हम मानेंगे, तो हमारा तो रॉन्ग है, हमने हटा दिया। हम मानेंगे इस बात, मैं कह रहा हूँ ना, हम मानेंगे, चलो देखो, हम मानेंगे। बोलेंगे तो बात मजा आएगा। फिर ये भी गलत है तो फिर मैं मानता हूँ।
Uli. Berarti itu terbena ke ini mana gini. Penduli mana? Ikan. इंडेक्स में देख लो Ini bolta por de. Ay, va bien. Tahu sih kan. हाँ जी ना Iya. ऐ सुनने वाले, क्या तूने न देखा कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। जहाँ कहीं 3 शख्सों की सरगोशी हो तो चौथा वो मौजूद होता है। कौन? अल्लाह मौजूद होता है। 3 शख्सों की सरगोशी में चौथा अल्लाह मौजूद होता है। और 5 की तो वो छठा रहता है। 5 की सरगोशी होती है तो छठा अल्लाह रहता है। और न इससे कम और न इससे ज्यादा, मगर ये कि वो उनके साथ है। तो ये जो और न इससे कम और न इससे ज्यादा, इसका आप मतलब क्या है? आप इससे पहले वाली आयत को पढ़ो, वही सरगोशिया का, इससे पहले की आयत का तर्जुमा पढ़ो, यानी और ऊपर, ये ऊपर वाली उसका सियाक को सिर्फ देखना चाहिए नहीं थे। ये भी चाहिए और ऊपर से पढ़ो। जिस दिन अल्लाह उन सबको उठाएगा, फिर उन्हें उनके करतूत जताएगा। अल्लाह ने उन्हें गिन रखा है और वो भूल गए, और हर चीज़ अल्लाह के सामने। और फिर वो ये, ऐ सुनने वाले, क्या तूने न देखा कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में। जहाँ कहीं 3 शख्सों की सरगोशी हो, चौथा वो मौजूद है, और 5 की तो छठा वो मौजूद है। और न इससे कम और न इससे ज़्यादा, मगर वो उनके साथ है। ये जो है लफ्ज़, और न इससे कम और न ये इससे ज़्यादा, इसका क्या मतलब? आप बताइए क्या मतलब। अच्छा, मैं बता दूँ। अब आप नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा, आप और मैं गलत करूँ तो आप बताइए। तो आपने पेश किया, आप हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। 3 शख्स चुपके, सरगोशी यानी चुपके से बात होती है, तो अल्लाह फरमा रहे चौथा मैं वहाँ हूँ। ये मत सोचो कि मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं मौजूद। और 5 की होती है, चुपके से 5 कहीं बात कर रहे तो छठा मैं हूँ, है ना। और न इससे कम न इससे ज्यादा। 3 रहते तो चौथा मैं। 3 + 1 इज कितना हुए? 4। 5 होते हैं तो छठा में। 5 + 1 6। और न इससे कम न इससे ज्यादा। तो इससे अब हाँ, हमें बात पूरी है। और न इससे, आप पूछे ना मेरे को, बताओ। 3 + अल्लाह 4, ठीक है, तो हो गए 4। और 5 और प्लस अल्लाह 6। और न इससे कम न इससे ज्यादा, यानी कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए जो अल्लाह बोलता है, न इससे कम न ज्यादा। अगर हम मान ले कि भाई नबी भी सुन रहे, तो 3 + 1 4 और +1 5, तो ज्यादा हो गए। और फिर 5 में छठा अल्लाह, फिर नबी भी सुन रहे तो +7, तो इससे ज्यादा। तो वो अल्लाह बोल रहा न इससे कम न इससे ज्यादा। तफसीर आप पढ़ी, उर्दू तो जानते हैं। मैं तफसीर, मैं आलिम की बात पे चलूँ क्या? अल्लाह की तफसीर नहीं, तर्जुमा। ये आलिम ने तर्जुमा किया ना, मैं इस तर्जुमे में ही गौर व फिक्र करता हूँ, तफसीर पे ही मान ला हूँ। क्योंकि ये अहमद रजा खान की तफसीर, वो अशरफ अली थानवी की, वो मौदूदी की, वो जो क्या नाम है, अशरफ अली, बहुत है। तो आप तफसीर तो पता है ना, हर आलिम की अलग, लेकिन तर्जुमा देखिए, जो मैं वहाँ पढ़ा वो यहाँ भी है। तर्जुमे में गड़बड़ नहीं होती, तर्जुमे में गड़बड़ नहीं होती। ये ना एक आध जगह वो जो अभी बताया मेरे को, वो होती है, लेकिन अल्लाह की वही में कोई गड़बड़ी नहीं, वो प्रोटेक्शन वही में तो बिल्कुल नहीं होती अरबिक में। लेकिन रात सवाल तर्जुमे में, जैसे 2-4 आयतें में, यानी 6000 आयतों में अगर 4 आयतों में किसी आलिम ने तर्जुमा किया है, वो इशू तो हटा दीजिए। अब यहाँ जो गुफ्तगू हो रही है एक पर्टिकुलर मैटर के लिए, ठीक है, तो इससे क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी मैटर नबी नहीं जानते, या सिर्फ इसी मैटर के बारे में? अच्छा, इसी मैटर में आपकी क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पहले अपना जवाब आपने पेश कर दिया ना।
صرف اس میٹر کو نبی نہیں جانتے یا تمام میٹر کو نہیں جانتے؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ یہ دب کی بات ہے، پتہ ہے آپ کو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، میں اس کو کلیئر کر رہا میں ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہی بتانے جا رہا ہوں. جہاں اللہ کے علاوہ چوتھا پانچواں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آپ یہ کہتے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی نہیں جانتے. کیا اونلی دس پرٹیکولر بات یا کوئی بھی بات نبی نہیں جانتے؟ وہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی حیات تھے، جب کے لیے بھی آئے تھے، جب بھی اللہ کے نبی وہ تین کے بیچ میں نہیں تھے، اب پانچواں پارہ اٹھائیے. تین کے بیچ اللہ کے نبی نہیں تھے، تو حیات میں بھی یہ اپلیکیبل ہے، لاگو ہوتی ہے، اور قیامت تک کے. اب تو آئی نہیں، جب تو تھے حیات. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں میری بات کا سوال نہیں بات سمجھے. آپ کا وہ جب یہ پرٹیکولر گفتگو نبی نہیں جانتے تھے یا کوئی بھی گفتگو نہیں جانتے تھے؟ تو میں وہی بول رہا کہ یہ گفتگو بھی نہیں جانتے تھے، ثابت ہے یہاں، ثابت ہے. ٹھیک ہے ہے نا. اور اور اس کے بعد جب تو حیات تھے. ٹھیک، حیات موت کی بات نہیں ہے. نہیں یہ میں آپ کو گفتگو بتانا چاہ رہا ہوں میرے کہ بھائی، اس ٹائم حیات تھے، یہ واقعہ ہوا تھا. حیات تھے تو تو نہیں سن رہے. حیات تھے تو صرف یہ بات نہیں سنے یا کوئی بھی بات نہیں سنے؟ میں بتا رہا ہوں کوئی بھی بات، مطلب جہاں اللہ کے نبی نہیں ہے، دشمن پیچھے چھپے جنگ عہد میں، صحابہ اتر کے پہاڑ پہ، تو اللہ کے نبی کو کہاں پتا تھا پیچھے پہاڑ کے؟ پتا نہیں. ہاں آپ کو تفسیر تو نہیں پڑھی نا؟ تب میرا وضو نہیں، آپ کو تفسیر نہیں پڑھنی نا، آپ کو تو ترجمہ ہی پڑھنا ہے نا. آئی سورہ سورہ آل عمران لیجیے، سورہ نساء لیجیے، آیت نمبر 1 پہ نساء لیجیے، میں دکھاتا ہوں. اچھا، اور اس طرف پہ ہے 512 ہے نا، اور ادھر میں پارے پہ نہیں سمجھتی آپ آیت نمبر. کوئی بات نہیں، میں دکھائیے یہاں. اور پھر 12واں رکو لیجیے، اور تھوڑا 12 13 دکھائیے. اور ادھر اس کا ترجمہ پڑھی تو آپ خاص یہ پہلے اوپر سے پڑھ تو یہاں سے. ہاں، ان کو پڑھ دیتے ہیں. کوئی بات نہیں. تو ان میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دے دیں اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے. دوبارہ پڑھو. اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. آپ کہتے ہیں نبی نہیں جانتے، آپ کس کی بات کو مانی؟ تو بتاؤ جو کیا نہیں جانتے تھے وہ بھی پیش کر. کس سے تفسیر سے پیش کریں گے؟ نہیں آیت سے پیش کریں. آیت سے پیش کریں. آیت سے پیش کریں. کیا بولے تو ترجمہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو آگے سکھا دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو نبی نہیں جانتے تھے ہم کہہ سکے، ورنہ اللہ پر بلیم ہو گیا. اب اس کا جواب آپ دیجئے قرآن سے، تفسیر سے نہیں. تفسیر سے، یہی تو بات ہے. تفسیر سے میں قرآن سے کوشش تو پیور سے ہونا چاہیے. حدیث کو مانتے نہیں ہیں. لیکن چلو ڈسٹرب مت کرو بیچ میں. مت بولو، میں نے بول دیا نا بھائی، آپ بات نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ مجھے آیت سے دکھا دو، اس آیت کا انکار کر کے دکھاؤ. نہیں انکار پڑھی ہو رہی آیت کا، یعنی سمجھنے کی بات ہے. وہ آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے تو یہ کیا ہے. سیکھنے کے لیے آئے ہیں کچھ آپ سے. انما الاعمال بالنیات، اور نیت ان کی سیکھنے کی ہے، اسی لیے ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو رہی ہے، ایکسچینج آف تھاٹس ہو رہی ہے. اچھا، پہلے ایک بات اور سن لیجیے. ڈسکشن ہماری تھی نبی موت کے بعد نہیں سنتے. ڈسکشن تو بہت نہیں، وہی یہ تو ابھی چل رہی. تھوڑے ابھی تک آپ نے کوئی کلیئر کٹ آیت نازل نہیں بتائی کہ آیت نہیں بتائی کہ نبی مرنے کے بعد نہیں سن سکتے. ابھی تک نہیں، ابھی تک کلیئر نہیں بتا دیا. یاد دلا رہا ہوں. چلو، ایک آیت انہوں نے بتائی، ایک آیت آپ نے بتائی، بتا رہے. سورہ یوسف ہے یہ. ٹھیک ہے، آیت نمبر 1 سے شروع سے پڑھتا ہوں. بالکل پڑھیے. یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اس سے عربی قرآن اتارا ہے
अरबी कुरान बता रहा है कि तुम समझो, क्योंकि अल्लाह के नबी अरबी थे, समझो हम तुम्हें सबसे अच्छा बयान सुनाते हैं, इसलिए कि हमने तुम्हारी तरफ इस कुरान की वही भेजी, अगरचे बेशक इससे पहले तुम्हें खबर न थी। ठीक है, इससे पहले खबर ना थी, अब खबर है कि नहीं? है ना? तो हम तो अभी की बात कर रहे हैं ना। अब खबर का मतलब रसूल अल्लाह को वही भेज के बोल रहे हैं। तो वही कि जब तो खबर हमने कब कहा कि नबी अपने तौर से जानते थे, अल्लाह की अता से जानते थे, दुनिया से तो पर्दा। हम क्या बोल रहे हैं, बिना अता के जानते थे? एक ही बात है, अता से ही सब आपकी ये आयत इससे पहले आपको खबर ना थी, मतलब अब आपको हम खबर दे रहे हैं, सही है ना? नबी अब वो आयत जो मैंने पेश की, जो कुछ आप नहीं, मगर वो चीज इनकम्प्लीट रही ना कि खबर क्या दे रहे हैं, अल्लाह ताला क्या खबर दे रहे हैं। नीचे वही तो जो पहले खबर नहीं थी वो हम खबर दे रहे हैं, ठीक है ना? इससे यूसुफ जो आपको खबर नहीं थी वो हम आपको खबर दे रहे हैं, वही के वही के जरिए खबर दे रहे हैं। और यहाँ भी वही के जरिए अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ आप नहीं जानते थे हमने सिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस आयत के बाद ए नबी जो कुछ आप नहीं जानते थे हमने सिखा दिया। इस आयत के बाद कोई एक ऐसी आयत दिखा दो कि नबी ने फरमाया हो मुझे ये नहीं मालूम, मुझे हो नहीं मालूम। इस आयत के बाद यानी पैगंबरी के अब आपके तौर वो भी बता अब आपके कहने पर जो सूरह मुजादिला के आयत 3 और 4 की बताई, ठीक है, उससे साबित किया कि नबी नहीं जानते। अब यहाँ अल्लाह ने फरमाया आप जो नहीं जानते थे हमने सिखा दिया, तो अब जितनी भी ना जानने वाली चीज थी सब मालूम तो हो गई, तो आप इसको क्यों नहीं मानते? नबी को मालूम हो गया। वही तो कुरान के जरिए पता चल गया ना। हाँ। लेकिन बात क्या है, पहले नहीं जानते थे ये किस्सा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे, हम वही के जरिए ठीक है, ऐसा सिंपल में लीजिए कि पहले जानते थे, अल्लाह बोल रहा है कि नहीं जानते थे। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना कि अल्लाह के नबी सब जानते थे मूसा ईसा के तो उसका भी हम जवाब देते। यहाँ जवाब फिर ये है ना, सिर्फ यही आयत आपको मिली ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अब आप पहला पारा लीजिए, पहला पारा लीजिए, तीसरी आयत लीजिए। इज़ क़ाल रब्बुक, तीसरी आयत तो शुरू ली और बस इसका तर्जुमा पढ़िए। वही ये वाला ना, हाँ छोड़ो और याद करो इसी ऐसे ना, और याद करो। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। बस अल्लाह ने क्या फरमाया? ए नबी याद करो, याद करो जब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले जो फरिश्तों से अल्लाह ने कलाम फरमाया, अल्लाह फरमाता है नबी आप याद करो, जब थे ही नहीं तो याद क्यों कर? जानते ही नहीं तो अल्लाह ने वही क़ाल याद करो क्यों फरमाया? अल्लाह याद दिला रहा है, इसलिए याद दिलाने के लिए होना, मौजूद होना जरूरी है कि नहीं? यानी आदम का आप सबूत दे रहे हैं, तो फिर मूसा ऐसा सब जानते वो तो बात हैं आगे ना, आगे ना। तो आयत फिर रौज़बिल्लाह सूरह यूसुफ नहीं। की आप इससे पहले इस नहीं जानते अरे थे। मेरे भाई, एक होता है इल्मी मुशाहिदा, यही तो बात मैं देखो एक जानना चाह रहा था। एक चीज होती है कि जहन में इंसान के करोड़ों बातें होती, ठीक है, बैक वक्त करोड़ों बातें जहन में नहीं होती। कोई जब याद दिलाता है ना तो फौरन वो बात आ जाए, मैंने उस वक्त ऐसा किया था। इसको पहले आप समझना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह ने ये फरमा दिया कि आप इससे पहले नहीं जानते थे, मतलब जब आपके सामने सब मौजूद तो है, हम आपको याद दिला रहे कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ। अगर नहीं तो वही क़ाल रब्बुक, अभी आदम अलैहिस्सलाम पैदा ही नहीं हुए, अल्लाह फरमाया नबी आप याद कीजिए। कहाँ का इंसाफ है भाई? चलो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात का आप इनकार कर रहे हैं, तब इस बात को कुरान से मानना पड़ेगा ना। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले नबी मौजूद थे, ये मानते कि नहीं? नहीं मानते तो इस आयत का तर्जुमा गलत कर दो। गलत नहीं, तर्जुमा का तो याद क्या- करो, याद करो वो वाकया। अरे भाई मैं अल्लाह आपसे ताला बोल रहा है, मैं हाँ, आपसे उस जगह बोला है, याद करो कल आप वाकया। तकरीर में थे? कल अच्छा नहीं थे। अब 2 दिन पहले कोई वाकया आपके साथ हादसा आया था? अब किसी से मुलाकात की होगी, एक आदमी का नाम बताओ 2 दिन से पहले मुलाकात की थी। ताहिर भाई से मुलाकात। अब मैं ये कहूँ कि भाई अब 2 दिन पहले ताहिर भाई से मुलाकात की, ज़रा याद करो। अगर आप मुलाकात नहीं करते तो मैं कैसे कहता कि याद करो? याद करो कहने के लिए आपका मुलाकात करना ज़रूरी था, आपका ज़िंदा रहना भी ज़रूरी था ना। तो
اللہ کے نبی نہیں تھے تو اللہ نے کیوں فرمایا اے نبی یاد کرو؟ تو وہی تو میں آپ سے بول رہا چلو، تھا، آپ مان رہے ہیں نا چلو، ایک کہ منٹ۔ آدم کا اور سب کا قصہ معلوم ہے، تو اللہ ایسا کیوں بول رہا ہے؟ تو یہاں اللہ یاد سے کرو گا۔ پوچھیے آپ، یہاں کہاں اللہ سے پوچھیے، اسی لیے تفسیر کی ضرورت ہے۔ ہاں، کیا ہے لیکن بغیر ہم آپ کو ایک قصہ سنا رہے ہیں، اچھا اس سے مجھے یہ پہلے بتاؤ، آپ کو خبر نہ ٹھیک ہے، اب تھی مجھے یہ اس بتاؤ قصے کی۔ آپ کو نبی سے اتنی دشمنی کیوں ہے؟ آپ غصہ مت نہیں، کرو وہ میں کہ آپ صبح بھی بات وہ ہوئی ہے۔ صرف وہی آیتیں ڈھونڈتے ہیں جہاں آپ کو یہ باتیں نظر آئے، یہ آیتیں کیوں نہیں دیکھتے ہاں، آپ؟ میں بتا رہا ہوں چلو ایک منٹ، تیسرا پارا لو، آخری آیت۔ تو آپ نے جواب نہیں لیا، دشمنی ہے کہ کیا وجہ ہے؟ جواب لیجیے نا۔ وہ بات کہ ہمارے کو دشمنی نہیں ہے، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی صفت پیغمبروں میں نہیں ڈالنی چاہیے، نہ انسانوں میں، نہ نہیں ولیوں ڈالے، میں۔ اللہ نے رؤوف کہ الرحیم اللہ ڈال دیا تعالیٰ ہے، رؤوف الرحیم اللہ نے ڈال دیا ہے۔ بالکل رحم کرنے والے ہیں، بالکل ہے، یہ تو تو اللہ- ہم مان رہے ہیں، ہم نے نہیں لیکن ڈالا۔ سن رہے ہیں پورے ورلڈ میں نبی کو اللہ کی صفت دینے والا اللہ ہے۔ تیسرے پارے کی آخری آیت لو، آخری رکو، آل عمران تیسرے پارے کی آخری رکو۔ یہ کون سا پارا ہے؟ لن تنالوا، اس طرف، یہ چوتھا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں کیا؟ اور آگے۔ نہیں ہاں بس یاد رکھتے وَلَقَدْ تو آپ کو تو سفر ہے نا، کیا ہوا؟ ادھر ٹھیک نہیں، اور اس سے ٹھیک ہے، یہاں سے پڑھو وَلَقَدْ وَإِذْ دَخَلَ اللَّهُ۔ ان کے پاس نام اب پہلے میں نے بتایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے روحیں تو تھی نا۔ آدم آدم علیہ السلام کو اللہ نے جسمانی طور سے پیدا فرمایا نا، اس سے پہلے انسان کی روحیں تو تھی نا۔ کو تو پتہ نہیں آپ کو ہے، پتہ نہیں تو میں- پورا قرآن ہم پڑھیں، اس سے پہلے روح ہم کہیں بتا نہیں ملا دیں، میرے اس کا ترجمہ پڑھو۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا، اس کی مدد کرنا فرمایا۔ اب آیت کو دوبارہ پڑھو، ترجمہ دوبارہ پہلے سے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد دیا، اللہ نے پیغمبروں سے عہد کب لیا؟ عالم ارواح میں، عالم ارواح میں تمام نبیوں سے عہد لیا کہ جب تمہارے درمیان میرا آخری نبی آئے، میرا رسول آئے، تو تم ان پر ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کر۔ اب مجھے بتائیے اللہ کو معلوم تو تھا یا نہیں کہ نبی کو آخر میں بھیجے گا؟ تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تمہارے درمیان، تم نبیوں کے درمیان میرا نبی آئے تو ان پر ایمان لانا؟ اللہ کو معلوم تھا، ان لوگوں کو نہیں ارے معلوم میرے تھا۔ بھائی، اللہ ہی بھیجنے والا نا نبیوں کو، اور ہمارے رسول کو اللہ نے آخر میں بھیجا، یہ بھی اللہ ہی بھیجنے والا۔ لیکن اللہ یہ فرماتا ہے اے موسیٰ، اے عیسیٰ، تمام نبیوں سے فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان اگر میرا نبی آئے تو تم ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا۔ مجھے یہ بتائیے اللہ نے یہ کہہ کے غلط کر دیا کیا؟ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بول رہا ہے اے موسیٰ، اے عیسیٰ، میرا رسول آئے گا تو تم نبیوں کا ذکر، تمام نبیوں کا ذکر۔ کیا بول رہا ہوں؟ آپ نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ مثال، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ابراہیم، اے آدم، مثال کے پیغمبر لوگ کے اے نبیوں کی جماعت، تمہارے درمیان میرا نبی، میرا رسول آ جائے تو تم ضرور ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ ہمارے نبی ان کے زمانے میں تو آئے نہیں، ٹھیک ہے، بعد میں آئے، اللہ ہی نے بعد میں بھیجا۔ تو اللہ جب جانتا ہے کہ وہ بعد میں بھیجے گا تو اللہ نے کیوں نبی سے فرمایا کہ تمہارے درمیان ہے تو ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا۔ ایک بات یہ ہوئی، پوری کرنے دو مجھے۔ پھر دوسرا اللہ فرماتا ہے اے نبی یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، تو نبیوں سے عہد لیتے وقت ہمارے نبی موجود تھے، تبھی تو فرمایا کہ یاد کرو ہم نے جب دوسرے نبیوں سے عہد لیا کہ جب تمہارے درمیان یہ نبی آئے تو ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ پھر آگے فرمایا، اور آگے اس کا ترجمہ پڑھ رہے، ہاں نہیں، اس کو ترجمہ پورا کرنے دو ہمیں۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا، کیا تم نے اقرار کیا، کیا تم نے قبول کیا اس بات کو؟ اللہ نبیوں سے پوچھ رہا ہے، اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ کیا یہ ذمہ داری لیتے ہو؟ ارے اللہ کیوں ذمہ داری دیتا ہے جب اللہ کو معلوم ہے بعد میں بھیجے گا، تو ابھی سے کیوں ذمہ داری دیتا ہے؟ آگے پڑھو۔ اور سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا، سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا، سب نے قبول پیغمبر سے سب کا اقرار کیا۔ ہاں، اس کے بعد فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ نبی سچے ہوتے ہیں یا جھوٹے ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے تو سچے ہوتے ہیں، تو جب انہوں نے قبول کیا تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ تم ایک دوسرے سے گواہ ہو جاؤ؟ نبی تو پھر نہیں سکتے وعدے سے، پھر بھی اللہ اور کنفرم کرا رہا ہے کہ نہیں گواہ ہو جاؤ۔ اور آگے پڑھو۔ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو گواہ جاؤ، میں بھی گواہ ہوں۔ ارے نبی پھر نہیں سکتے، پھر بھی گواہ بناتا ہے اللہ، پھر کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ارے اللہ کیوں گواہ بنتا ہے جب اللہ کو معلوم ہے کہ نبی کو آخر میں بھیجے گا؟ کیا پتا چلا؟ میرے نبی کی شان کو معمولی مت سمجھو،
आलम अरवा में भी नबी की तारीफ हो रही है। हो गया कि मेरे को इसकी वो आप बोले ना, मैं बताना अब मुझे आपसे इससे ये सवाल है, आप सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्से वाली आयत पेश करते हो, मैंने 2 आयतें पेश कर दी, इसके जवाब में मुझे कोई आयत दे दो कि नबी वो भी नहीं जानते थे। हाँ, अभी आप लोग ने सुना है, ये जो सुने ना, आपने कहा इस आयत में कि अल्लाह ताला मूसा और इब्राहिम, मैंने वो मिसाल के तौर नबियों के, जैसे नबी आप पूछेंगे कौन नबी, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नबी है कि जमात, वो मिसाल के तौर देखिए यहाँ मिसाल नहीं, यहाँ ये आप बता रहे यहाँ हैं नबियों का जिक्र है ना। चलो मैं उस वो मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को वापस लेता हूँ नाम को, नबियों का जिक्र है तो सब आ गए, मूसा अलैहिस्सलाम भी आ गए। अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते तो वो भी आ गए। तो यानी आप यहाँ ये इस आयत में ये फरमाना चाह रहे कि अल्लाह ताला ने तमाम पैगंबरों से अहद लिया, है ना। और अहद लेने से पहले अहद लिया तो नबी से फरमा रहे कि नबी आप याद करो कुरान कब नाजिल, कुरान कब नाजिल हुआ नबी की दुनियावी जिंदगी में, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि याद करो, मतलब नबी उस वक्त मौजूद थे और याद करने के लिए नबी देख रहे थे कि अल्लाह ताला नबियों से कैसे जिक्र फरमा रहा है, कैसे वादा ले रहा है और कैसे गवाह बना रहा है। तो आप फरमा रहे हैं कि तमाम पैगंबरों से अहद लिया, हाँ है ना। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा। हाँ वही कुरान कह रहा है, तमाम पैगंबरों से अहद लिया। उम्मत यानी औलाद का भी है, दिखाओ। मैं बताऊँ अभी, औलाद आदम का भी है, वो भी दिखाता हूँ। आयत में दोनों बातें नहीं, इसमें सिर्फ नबियों का है ना, दूसरी आयत में तमाम लोगों का है। अच्छा दिखाइए। ठहरिए, मैं ये आयत पहले क्लियर करूँ फिर दूसरी आयत। बिल्कुल। आप इस आयत में फरमा रहे कि तमाम पैगंबरों से हमने अहद लिया, पैगंबरों से कि मेरे पैगंबर आएंगे। हमने तमाम पैगंबरों से अहद मेरा लिया। कहना यहाँ ये है, आप बात को समझने की कोशिश वही समझूंगा फिर मैं पढ़ूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नबी को तमाम चीजें मालूम थी, ये हमारा अकीदा। तुम्हारा अकीदा नबी को पहले मालूम नहीं थी। वो बात नहीं हो रही है, ये वही हो क्या बात हो रही रही है। आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करके यही बताया कि नबी को पहले मालूम नहीं था, अल्लाह के बताने पर मालूम हुआ। हम ये कहते हैं कि बेशक अल्लाह के बताने ही पर सब मालूम था और ये सब के सब अल्लाह ने पहले से ही बता दिया है। ये हमारे आर्ग्यूमेंट ये है। आप बदलना नहीं टॉपिक को, समझे। नबी को अल्लाह ने सब कुछ बता दिया, पहले से मालूम है, ये हमारा अकीदा है। 2 आयतें पर याद आती, नबी के इल्म में तो सब कुछ है। अच्छा, अब मैं दूसरी आयत आपको बता दूं, ये तो नबियों का जिक्र हो मेरे भाई, और से पढ़िए, और से पढ़िए, और आयतें दिखाएंगे आपको। हाँ, वो नहीं थी, देंगे नहीं थे। अब देखो तो देख, बुजुर्गों का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम भी तो ऐसा हाजी साहब, वो मुझे नींबू का पानी जरा दोबारा नींबू पर और हाफिज साहब खैरियत से हैं? माशाल्लाह, आपने उनकी मांग नदिल के पढ़ के दी, बहुत मजा आया माशाल्लाह। इस आयत में जो आप बात बोल रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, नबी को सब कुछ अल्लाह ने बता दिया। नहीं आपने आप ये कह रहे हैं कि नबी ये चीजें नहीं जानते, मैं ये कह रहा हूँ कि नबी सब चीज जानते हैं। आप फरमा रहे कि अहद लिया कि मेरे पैगंबर आएंगे, पैगंबरों को बोल रहे हैं ना, पैगंबरों को ही बोल रहे हैं ना, पैगंबरों नहीं, हमारे नबी को अल्लाह बोल रहा है कि आप याद करो, मैंने पैगंबरों से अहद लिया। क्या अहद लिया कि मेरे रसूल आएंगे? हाँ, तो आप याद करो का मतलब जब थे ही नहीं तो याद करना कैसा? तो यानी वही ना, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे क्या कि तमाम पैगंबरों से अहद लिया कि मूसा से, ईसा से, सब पैगंबर आ गए कि मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो उनकी मदद करना, है ना। आप ये बताना चाह रहे हैं? ये नहीं बताना चाहता, ये जो वाकया हुआ ए नबी उसको आप याद कीजिए, तो याद करने के लिए नबी का मौजूद रहना जरूरी था। तो भाई नबी का मौजूद रहना, आपका मानना यह है कि नबी मौजूद नहीं थे। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कब मदद करेंगे? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान रहेंगे तभी मदद करेंगे ना। अल्लाह फरमा रहा है, वही तो मैं कहाँ है उनके दरमियान में, कहाँ? अल्लाह को गलत कह रहे हो आप। तो ये आप सोचिए, ये उम्मत
ये आप अरे सोचिए, मेरे भाई आप क्यों मेरे जो मूसा के टाइम मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे, नहीं, तो अल्लाह तो फरमा रहा है कि जब वो आएंगे तो तुम उनकी मदद करना। हाँ तो इसका मतलब ये उम्मतियों को बोल रहा है कि जब तुम्हारे पास मेरे रसूल आए, नबी, तर्जुमा पढ़ो, तर्जुमा आप पढ़ो। देखिए ना, आप क्या आप बोलिए कि मूसा और इब्राहिम या इसाक अलैहिस्सलाम के टाइम मोहम्मद रसूलुल्लाह आए थे, समझ रहे नहीं हो आप बोल रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ना, अब बोलो। और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से उनका अहद लिया, तब से पैगंबर आप उम्मत को कहाँ से लाए? पैगंबरों से अहद लिया, पैगंबरों से अहद लिया, यही तो बोल रहा हूँ मैं। तब पैगंबरों से अहद लिया तो अल्लाह फरमा रहे हैं नबी याद करो। तो आप कह रहे हैं कि नबी मौजूद नहीं थे, मैं कह रहा हूँ मौजूद नहीं थे, तो अल्लाह ने याद करो क्यों फरमाया? हाँ, तो सब पैगंबर मौजूद थे ना। आप नबी पर क्यों बोल रहे हैं? आपकी बात ले ना, आप बोल रहे हैं पैगंबर एक मौजूद थे, सब पैगंबर मौजूद थे। ये उसी में इन्हें सब पैगंबर मौजूद थे, हमारे नबी भी मौजूद थे, तभी अल्लाह ने फरमाया याद करो। ये बात कह रहा हूँ, आप मानते नहीं कि नबी हाँ, मौजूद तो जब नबी मौजूद थे तो अल्लाह ताला बोल रहा है पैगंबरों, जब मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो तुम उनकी मदद करना, ये बोल रहे हैं ना आप। तो नूह अलैहिस्सलाम के टाइम मोहम्मद भाई साहब पहले जो आए बोल रहे हैं, आप कहना ही चाह रहे हैं कि हर वो आलम में अरवाह का कुछ भी मालूमात नहीं है। वही तो मैंने कहा कि किसी आलिम को सामने लाओ। देखिए, आलम में अरवाह की माने ही नहीं मालूम, आलम में अरवाह का वो जमाना ही नहीं मालूम चलो ठीक उनको। है, वही तो मैंने शुरू में कहा कि एक आलिम से जब इनसे बात जी हजरत, ये चाहिए हमें। चलो ठीक है, कहाँ जिक्र क्या नहीं, ये बात देखिए, आप बताना ही चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला बोल रहा है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको यूसुफ का किस्सा सुना रहे हैं, इससे पहले आपको खबर न थी। सातवां पारा उसकी तशरीह में ये बता रहे हैं, ये आयत में वो आई नहीं। ठीक है, सूर्य नाम लो 7वां पारा। मैं इस्लाह कर लेने आई, इंशाल्लाह इनकी इस्लाह होती है, बीच में डिस्कस कौन भी करने को। दूर जा रहे हो, कौन सा है ये वाला? 7वां पारा लो, सूर्य नाम, ठीक है। ये कौन सी आयत है? अच्छा यहाँ पे और इस तस्वीर और एक नहीं तो दलील दिए कुरान से, एक भी दलील कुरान से रद्द नहीं है। और कुरान के नस कैसे साबित है? से कुरान से दो ना कि तुम्हारे ऐसे तो कहाँ है? वाला रशीम वाला या बिस्मिल्लाह फी किताब ये फतेह परी नहीं है, 7वें पारा में किस तरफ है? ये आते पारी के करीब में देखिए, नहीं यार, आधा पारा जब जो जाता है अरे और तो बगुर रजी इंशाल्लाह अब इस तरफ ये शगो इधर ऑन द बी इनकी सब्र से बात करें हिंदत में हो वला रतीम वला या बिस्मिल्लाह तल मुबी आधे पारे से थोड़ा आगे, ये और ये भी ऑफिस अभी मौजूद है ना? अच्छा आगे नीचे थोड़ा आगे, आधे पारे से। हाँ ये हो गया, ठीक है। यहाँ से पढ़ो और जो पत्ता गिरता है वो उसे जानता है, और कोई दाना नहीं जमीन के अंधेरियों में, और ना कोई तर और ना खुश जो एक रोशन किताब में लिखा न हो। अब पढ़िए आप, सही पढ़े ना, पढ़ो यार। अब आप जो है ना तफसीर तो नहीं देखते? नहीं, रोशन किताब में तो क्या मतलब हुआ? कुरान में हर खुश्क हर तर का जिक्र है, एवरी विट एंड ड्राई का कुरान शरीफ में जिक्र है। दूसरी जगह पे है वला असगर मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फी किताब मुबीन, हर छोटी बड़ी जिक्र का मौजूद, ठीक है ना? कुरान में हर छोटी बड़ी जिक्र का इल्म मौजूद है। अब लीजिए सूरह रूम 21वां पारा, यहाँ भी है और आगे, और अरे 21वां पारा और आगे लिए, और बस और आगे 21वां पारा लिए, सूरह लुकमान ली, और वाली रूम, और उसके बाद लुकमान ली, और आप चाहे ठीक, चल ठीक, इसको तरना पड़ी। और अगर ज़मीन में बोले वो नमाफी, और अगर ज़मीन में जितने पेड़ हैं सब कलमे हो जाएं, और समंदर इसकी सियाही हो, इसके पीछे 7 समंदर और
تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی. کیا مطلب ہوا کہ زمین میں جتنے درخت ہیں، کتنے درخت ہیں پتہ ہے؟ پورے روڈ اور سب درختوں کو تم علم بنا لو، ٹھیک ہے، اور پورے سمندر کو سیاہی. ایک اتنے گلاس میں، ایک پین میں جس میں ہم 100-200 صفحہ لکھتے ہیں، پانی کا 1 یا 2 ڈراپ ہوتا ہے. تو اتنے ڈراپ میں تو کئی قلم بن جائیں گے، پورے جگ میں سینکڑوں قلم بن جائیں گے، پوری ندی میں تو ہزاروں قلم بن جائیں گے، اور پورے سمندر میں کروڑوں اربوں قلم بن جائیں گے. اللہ نے فرمایا مزید اور 7 سمندر لے لو. اس کے بعد بھی قرآن کی تفسیر کرو گے تو قرآن کی تفسیر نہیں ختم نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ قرآن میں اتنی چیزیں اللہ نے فرما دی ہے. قرآن میں اتنی چیزیں ہیں کہ تمام درخت کو قلم بنا کر 7 سمندر، ایک نہیں 7 اور سمندر لے لو، انک بنا لو، پھر بھی ختم نہیں ہے. اور یہ وہ قرآن ہے جس میں ہر چھوٹی بڑی کا ذکر ہے، ہر خشک و تر کا ذکر ہے. اب سورہ رحمان لو، 28 پارہ لو. دوبارہ بولتا ہوں، قرآن میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر ہے، ہر ویٹ اینڈ ڈرائی چیز کا ذکر ہے. اتنا ذکر ہے کہ پوری قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے اگر دنیا کے تمام درخت کو پین بنا لو، سمندر کو انک بنا لو، 7 سمندر اور لے کر انک بنا لو، پھر بھی قرآن کا علم ختم نہیں ہوگا. سورہ رحمان کی پہلی آیت پڑھو. الرحمن علم القرآن. ترجمہ پڑھو. 7 پر میں اسٹارٹ میں 7 آدھے کے بعد ہے. کہاں ہے یہ؟ تو ہاں ٹھیک ہے، رحمان ہے صحیح. نہیں زخرف ہے، ادھر ہے 27واں پارہ. اور آگے ہاں بس ترجمہ پڑھو نا. ہاں، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. ٹھیک، بس اتنا کافی. اللہ نے فرمایا اے نبی قرآن ہم نے آپ کو سکھایا. قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، چھوٹی بڑی چیز کا ذکر ہے. اتنا ذکر ہے کہ تمام سمندر کو درخت کو قلم بنا لو، سمندر کو انک بنا لو تو بھی ختم نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ نبی کے علم کو لکھنے کے لیے تمام درخت کو قلم بنا لو، سمندر کو سیاہی بنا لو، 7 سمندر اور لے لو، نبی کے علم کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. ایک بات یہ ہوئی. اب لو سورہ قیامہ 29ویں پارے میں. اب نبی کے آپ کو جو نا وہ ایک چن کے آیتیں لیتے ہو، یہ آیتیں کہاں جائے گی؟ سورہ قیامہ 29واں پارہ. اور لو سورہ نوح کے بعد. ہاں اور آگے مدثر کے بعد. ٹھیک، اور آگے مدثر کے بعد ہے. ہاں اب آئیے. اللہم صلی وسلم وبارک علیک. لا تحرک ان علینا. اس کو پڑھو. بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہی تو ہے. جب ہم اسے پڑھ چکے، اس وقت اسے پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمے ہی. قرآن کی باریکیوں کو ظاہر فرمانا اللہ فرماتا ہے نبی یہ ہمارے ذمے ہے. تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا. نبی کو پورا قرآن سکھا دے گا اور نبی کو ہر چیز کا علم دے دے گا. تم کہتے ہو یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا. ہم تمہاری بات کو مانیں یا اس بات کو مانیں؟ 4 دلیل ہے قرآن سے. ارے اور بہت ہیں. اب میں یہ کہنا ہوں، آپ نے صرف سورہ مجادلہ کی وہ کفار منافقین کے تعلق سے ہونے والی راز کو پکڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو معلوم نہیں. اور سورہ یوسف کے بعد کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. ہم اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ اس سے پہلے نہیں جانتے، اگر مان لے تو اب تو جانتے ہیں. جانتے تو ہم بھی ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک. یہ دیکھیے آپ ہے نا، پہلے نہیں جانتے تھے، مان لو ہم بھی مان رہے ہیں، لیکن آپ بولتے ہیں کہ سب جانتے پہلے کے. یہ بات اب جانتے، پھر اللہ بول رہا ہے آپ نہیں جانتے تھے، ہم کس ساتھ سنا آپ نے قبول کیا نا. پہلے نہیں جانتے تھے، اب جانتے آپ مان رہے ہیں. اب جانتے آپ مان رہے ہیں نا. مان رہے ہیں. ابھی جانتے آپ مان رہے وہی ہیں. آ چکی ہے. ابھی جانتے آپ مان رہے ہیں. قرآن پورا ہو چکا ہے، دین پورا ہو چکا ہے. لیکن بات کیا تھی ہماری؟ پہلے سے جانتے تھے. آپ بولے کہ آدم سے لے کے سب پورا جانتے تو اس کے لیے ہم نے دلیلیں دی نا. اس کے لیے دلیلیں دی. اب نہیں، اس کے لیے میں نے آدم علیہ السلام والے آیت پیش کی. یہ سب دلیلیں دے رہے ہیں آپ. میرے بھائی بات سے آپ کیا لگ رہا ہے کہ سب جانتے، غیب جانتے، سب بول رہے ہیں آپ، ہے نا. میں بھی تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں. اچھا، اب میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. میں نے جو فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ میں آدم کو پیدا کرنے اور نبی سے فرمایا نبی آپ یاد کرو، اس کا کیا مطلب ہوگا پھر اگر جانتے نہیں تھے تو؟ جواب دو. اسی طرح نبیوں سے عہد لیا. اچھا، اسی طرح نبی کے پیدا ہونے کے کچھ سال پہلے فیل کا واقعہ ہوا، ہاتھیوں والا، ہے نا.
وہ جو ابرہا، ٹھیک ہے نا، اللہ نے فرمایا الم تر، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ پیدا تو نبی نہیں ہوئے تھے، ہاں الم تر فرمایا. چلو یہ 2-4 سال کی بات تھی. ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اللہ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج، کیا نبی آپ نے نہیں دیکھا ہے نمرود ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ جب تھے نہیں تو نہ دیکھنے والی بات کہاں سے آ گئی بھائی؟ وہی میں آپ تو یہ سب آیتیں کہاں جائے گی؟ تو وہی آپ کا وہی ہمارا یہ کہنا ہے. آپ ایک ڈسکس پر اتر رہے نہیں پورے. میرا یہ کہنا ہے، میں نے جو کہا نا کہ نبی سے دشمنی کی بات، اس کی وضاحت کرتا ہوں. اتنی ساری آیتیں ہیں کہ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، یاد کرو. ان سب کو آپ نے نظر انداز کر کے صرف انہی آیتوں کو کیوں لیا؟ اس کا جواب پہلا دو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب آیتوں کو آپ سمجھ رہے نہیں. اللہ تعالیٰ کا کہنے کا یہی مطلب ہے. آپ ہی سمجھ رہے تو بتا دو کیسے ثابت آپ ہے نا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ کے ٹائم بھی سارے واقعات پتہ تھے، اور آدم کی ہوا اور وہ سب واقعات پتہ تھے بنا بتائے. ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ وحی آنے کے بعد آتا معلومات ہوتی، پھر بولتے ہیں کہ اللہ کے عطاہی سے سب معلوم ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جیسے پورا قرآن ختم ہو گیا، نبی کا علم کمپلیٹ ہو گیا، اور نبی نے فرمایا، حدیث سنیے، علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی. ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے فرمایا علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی. میرا علم میرے دنیا سے جانے کے بعد ایسا ہی ہے جیسا میری زندگی میں میرا علم. تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی کا علم آج بھی وہی ہے. اب وہ ہے نا، قرآن ہے، سمپل ہے. تو آپ اس کو ریجیکٹ کرو نا. اب میرا سوال یہ ہے، کیا ہم نے بتاؤ نا. آپ نے کہا کہ نبی اب نہیں سنتے، کہا کہ نہیں؟ ایک دلیل دی آپ نے ابھی تک. علم ہے تو علم کے اوپر عمل کرنا ہے نا. دلیل تو نہیں دی آپ نے. اگر یہ دلیل کیا دلیل، آپ ایک بات بول رہے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ آتا ہے؟ نہیں آتے نہیں آتے. اب آپ دوسری جگہ بول رہے ہیں آ سکتے ہیں. تو اس کا کیا میں مطلب سمجھوں؟ میں کنفیوز ہو رہا ہوں. آپ کنفیوز آ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی آ سکتے. کون کہتا ہے نہیں آتے؟ بولتے آ بھی سکتے. تو اس کا میں مطلب کیا سمجھوں؟ نہیں بھی آ سکتے نہیں کہا میں نے، جہاں چاہے وہاں جائے. تین چار جگہ سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، 3-4 جگہ سے ریکارڈنگ سنیے، 4-5 جگہ سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ ریورس کر کے سن لیجئے. میں نے یہ کہا ہمارے نبی حیات ہے، اپنے جسم کے ساتھ تمام نبی حیات ہے، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. تو وہی تو میں یہ سمجھوں نا، جہاں جا سکتے مطلب میری محفل میں بھی جا سکتے ہیں، ہماری جو محفل ہے ادھر بھی جا سکتے ہیں. نبی کی مرضی، ان کی مرضی ہو سکتی ہے، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے بھائی؟ تو یہی تو بات ہے. تو میں کب سمجھوں کہ وہاں گئے ہیں، وہاں جا چکے ہیں. تو گئے تو موجود ہے کہ میں کیسے پتا چلے؟ آپ کو اس بات کو یقین کرو کہ نبی جہاں چاہے جا سکتے ہیں. مجھ سے بڑھ کر آپ میں کیا سمجھ، آپ اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو بات ہے نا. آپ اس کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اچھا دوسری بات حضرت بتا رہے ہیں. دوسری بات جو ہماری ڈسکشن تھی، نمبر 1 نبی قبر میں حیات ہے. انہوں نے اس بات کو کہی کہ ہم مانتے ہیں حیات ہے، لیکن جسم کے ساتھ حیات ہے یہ نہیں مانتے. یہ کہ اس پر کوئی دلیل ایک بھی نہیں دی. میں نے دلیل دی بیہقی کے حوالے سے، امام سبکی کی کتاب کے حوالے سے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے، کہ انبیاء کرام کی روحیں دوبارہ ان کے جسموں میں قرآن کے باہر کی بات پوری کرنے دیجیے. قرآن سے ہی ثابت ہے، قرآن سے ہی ثابت ہے، قرآن کی روشنی ہی میں حدیثیں ہیں. اور آپ کے ابن تیمیہ کو مانتے ہیں آپ؟ کون ابن تیمیہ؟ وہ آپ کے غیر مقلدوں کے بڑے امام ہے ابن تیمیہ. نہیں جانتے، اس کا مطلب عالم نہیں ہو. چلو ٹھیک ہے. ابن تیمیہ کا شاگرد ہے ابن قیم جوزی. آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے. ابن قیم جوزی نے کتاب لکھی ہے کتاب الروح. میرے پاس میرے موبائل میں وہ کتاب موجود بھی ہے، انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کر سکتے. جب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کے بارے میں کیا ضرورت ہے؟ سنیے، غیر مقلدوں کے امام ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم جوزی کتاب الروح میں لکھتا ہے کہ ایسے واقعات کئی مرتبہ پیش آئے کہ صحابہ کرام یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام وصال کے بعد جنگوں میں آ کے مدد کرتے تھے. تبھی
सहाबा कराम मदद करते थे। किसकी मदद करते थे? मुसलमानों की। अच्छा, जो जंग होती थी इंतकाल के बाद। इंतकाल के बाद। हाँ, आपकी किताबों में लिखा है। कौन सी मेरी किताब कौन सी? मेरी किताब कुरान है बस। तुम्हारी किताब में क्या बोल रहे हैं? अरे पढ़ना में आता है जिसकी बात को सुनकर आप कहते हो ना कि हम सिर्फ कुरान को मानेंगे, उनका कहना है, उनकी किताबों का जिक्र है। अब मुझे बताइए आपको किताबों में बहुत गड़बड़ है। नहीं मैं कुरान पाक है, मिलावट से हम कुरान को पकड़ के सारी बात। अरे वही तो मैंने कहा, किताब ये कुरान हम तो चलो, ये कुरान है कह के, ये कुरान है कह के हमको पता इसलिए चला। कुरान को समझेंगे सर। जी अरे भाई, कुरान शरीफ, कुरान मैंने शुरू में बताया ना, हमारे नबी की एक जबान मुबारक, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया कि ये अल्लाह का कलाम को कुरान बन गया, ये मेरा कलाम, ये हदीस बन गई। तो कुरान को कुरान मानने के लिए नबी की जबान को मानना जरूरी है। सही हदीस होना चाहिए, लेकिन सही होना चाहिए। सही हदीस, बस मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था। सही हदीस है कह के आपको कैसे बात हदीस सही है कह के आपको कैसे पता चलेगा? हमारा पहचानने का ये तरीका है, क्या तरीका? ये अल्लाह के नबी की बात है कि नहीं है। हम लोग कुरान की रोशनी में चेक करते हैं कि अल्लाह के नबी की बात कुरान के खिलाफ हरगिज नहीं हो सकती। नहीं। ठीक है, अच्छी अगर बात। कुरान के खिलाफ लगती है तो हम ये समझ जाते हैं कि ये दुश्मनों की, चाहे शिया यहूदी जो भी हो, ठीक है, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कड़ा है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कुरान फुरकान है, अल्लाह फरमा रहे ये किताब सच और झूठ का फैसला। इस बेस पे हम लोग ये काम करते हैं। वो रावी चेक और सब जो उलमाओं का फन है ना, हम नहीं, हम लोग इसलिए कि दुश्मन रावी ओरिजिनली रखता है, रसूल अल्लाह का नाम रखता है, साहबाओं का रख के ही डुप्लीकेट बात घुसाता है, क्योंकि वो डुप्लीकेट नाम तो रखेगा नहीं। अब्दुल्ला बिन सबा या अबू जहल ओरिजिनल नाम रख के वो लोग काम करते हैं। कि इमाम बुखारी देखिए कई लाख हदीस जमा की, आप सुने होंगे, और सब रिजेक्ट करके सिर्फ कितनी है सही हदीस? ये गलत है। अभी मैं सुना हूँ कई लाख। आप सुने हो तो आपने अच्छा, कितने लाख हदीस जमा इमाम किए थे? बुखारी को 6 लाख हदीसें याद थी, हाँ। और उसमें से सही हदीस 1 लाख थी, और बुखारी शरीफ में तकरीबन 7000 हदीसों को जमा किया। बाकी सब जमा नहीं किया, इसका मतलब ये है कि हदीसें नहीं है। नहीं वो राइट, अरे उनकी दूसरी किताबों में है, दूसरी बुखारी की और दूसरी किताब में अल अदबुल मुफरद है इमाम बुखारी की। देखिए मेरे जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग क्या करना पता है, एक के बाद बुखारी बच्चा कीजिए, बुखारी शरीफ को आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। क्यों मानते हो? क्योंकि वो बहुत अच्छे आलिम है। बुखारी शरीफ को मानने के लिए आपको कहा किसने? हाँ, बुखारी शरीफ को मानने के लिए आपको क्या नबी ने कहा? इमाम बुखारी 250 साल बाद पैदा हुए, क्या नबी ने फरमाया कि बुखारी की हदीस लो? क्यों मानते? आप जब कुरान के अलावा जाते नहीं तो बुखारी की हदीस को मानने का क्या हक है? अल्लाह के नबी की सुन्नत उसी में है ना, सब जमा। आपने खुद कहा ना कि रावी जो है ना फैब्रिकेट करते हैं, नाम को चेंज करते हैं, आप ही ने तो कहा। तो क्या यकीन है कि बुखारी में सही हदीस है? रावी सही भी है ना, गलत भी है। सही है क्या कि किसने कहा? अच्छा, गलत है आप नहीं जानते? मेरे भाई बुखारी में, बुखारी में हदीस से सही है क्या कि किसने कहा आपको? किसने कहा कि हम उसको चेक करते हैं? अरे कुरान से। अरे मेरे तो गलत है क्या कि किसने कहा? चेक करते हैं कुरान से। आपको जब अरबी नहीं आती तो कैसे आप चेक करते हैं? तर्जुमे से। तर्जुमा करने वाला कौन है आपको क्या पता? आलिम लोग। तो उन आलिम को आप मानते हैं ना? उन आलिम को मानने का हक किसने आपको दिया? किसने दिया पता चलता है। अजीब सी बात करते हो, अजीब सी बात करते हैं आप कहते हो कि मैं कुरान के अलावा किसी चीज को नहीं मानता, लेकिन आलिम के तर्जुमे पर आप कुरान को मानते हो, इसका मतलब आलिम को मानते हो, और उस आलिम के कहने पर सही और ज़ईफ हदीस को तुम कबूल कर लेते हो। तो इस आलिम को मानने का हक किसने दिया? मुझे बताइए कौन आलिम है? आलिम बहुत है, किसका आपने किस आलिम की बात कह के ये सब कह रहे हो कि ये सही है, ये कुरान से? मैं आपको अरबी नहीं, मेरे भाई आपको अरबी नहीं आती, आपने इकरार किया। आपको ना कुरान पढ़ना आता है अरबी, ना हदीस अरबी में पढ़नी आती, आपने इकरार किया। तर्जुमे के बेस पर आपने फैसला किया कि ये सही है, ये गलत है। तो जिसके तर्जुमे पर बेस किया वो कौन है? इंसान है, आलिम। तो एक आलिम को फॉलो क्यों करते हो जब आप कुरान के अलावा किसी को मानते नहीं? तो आप तर्जुमे पे डिपेंड क्यों होते हो? सही है। आप मैंने जब कहा कि ये हदीस है तो आप कहते हो कि ये हदीस गलत है। आपको गलत और सही की पहचान अरबी के बगैर आ नहीं सकती, तो किसी एक के कहने पर आप उसको सही और गलत मानते ना। वो कौन आदमी है जिसकी बात को आप मान के बैठे हो?
अरे अल्लाह की बात है ये, आदमी की बात है। आप समझे मेरी बात? ये मेरी बात, इनका नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या? असलम भाई। असलम भाई, मेरी बात को आप बखूबी समझ चुके हैं। आपके पास जवाब नहीं है। आपने कुरान आपने खुद इकरार किया, मैं नहीं कहा ना, इसने खुद इकरार किया अरबी मैं नहीं जानता, और तर्जुमे के बेस पर मैंने सही और गलत का फैसला किया। तो किसके तर्जुमे के बेस पर आपने सही और गलत का फैसला किया? चलो आला, मुझे बताओ, आला हजरत के तर्जुमे पर आपने वही तर्जुमा हो रहा है। तर्जुमा हो रहा है, वही कहा जा रहा ये तो अभी देख रहे हैं ना, आपने पहले से आके बता दिया ना कि वो हदीस सही नहीं है। हाँ, तो पहले से मालूम है वही। अच्छा ठीक है, ठीक है, बात इसी में ठीक है। तो आला हजरत की बात को लेके कहे ना, तो आला हजरत की बात से तो सरकार का इल्म गैब साबित होता है, आप क्यों मानते नहीं? और आला हजरत की बात से ये भी साबित होता है कि अंबिया किराम कब्रों यानी कब्रों में सुनते नहीं, कह के कोई तर्जुमा नहीं है, आप उसको क्यों नहीं मानते? आला हजरत की बात से गैब का इल्म मालूम होता है, तो यहाँ तो आला हजरत ही तो बोल रहे तर्जुमा किए हुए। सुनिए आप, आला हजरत ही तर्जुमा आप जरा चुप बैठो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे कयामत को पूछते हैं कि वो कब ठहरी है, तुम फरमाओ इसका इल्म तो मेरे रब के पास है, उसे वही उसके वक्त पर जाहिर करेगा। भारी पड़ रही है आसमानों और जमीन में, तुम पर न आएगी मगर अचानक। तुमसे ऐसा पूछते हैं गोया तुमने इसे खूब तहकीक कर रखा हो, तुम फरमाओ ए नबी उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, लेकिन बहुत लोग जानते नहीं। तुम फरमाओ ए नबी मैं अपनी जान के भले और बुरे का खुद मुख्तार नहीं, मगर जो अल्लाह चाहे। अगर मैं गैब की बात गैब जान लिया करता तो यूं होता कि मैंने बहुत सी भलाई जमा कर ली और मुझे कोई बुराई न पहुंचती। मैं तो वही डर और खुशी सुनाने वाला हूँ उन्हें जो ईमान रखते हैं। अब ये तर्जुमा तो अहमद रजा खान का ही कि मैं नहीं जानता कयामत कब आएगी, ए नबी इनसे कहो कि मैं गैब नहीं जानता। ये कौन मैं किया हुआ तर्जुमा? ठीक है, बात सुनिए आप, दोबारा इसको पढ़िए आप पढ़िए भाई, अब दोबारा पढ़िए, हम समझाते हैं आहिस्ता आहिस्ता आपको। तुमसे कयामत के बाद डिस्कस करो, ये आवाज करो ना। ठीक है, ठीक है, मोबाइल को साइलेंट कर लो, साइलेंट कर लो। तुमसे क़यामत को पूछते हैं कि वो कब को ठहरी है, तुम फरमाओ इसका इल्म तो मेरे रब के पास है, इसे वही इसके वक्त पर जाहिर करेगा। भारी पड़ रही है आसमान और जमीन में, तुम पर ना आएगी मगर अचानक। तुमसे ऐसा पूछते हैं गोया तुमने इसे खूब तहकीक कर रखा है, तुम फरमाओ इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, लेकिन बहुत लोग जानते नहीं। तुम फरमाओ मैं अपनी जान के भले बुरे का खुद मुख्तार नहीं, मगर जो अल्लाह चाहे। और अगर मैं गैब जान लिया करता तो यूं होता कि मैंने बहुत भलाई जमा कर ली और मुझे कोई बुराई न पहुंचे। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? साबित क्या जो लिखा है कि मैं गैब नहीं जानता। गैब का मतलब अनसीन, पोशीदा अहवाल। ठीक है, सही है कि नहीं? मैं नहीं जानता। अगर मैं गैब जानता तो बहुत से फायदे उठा लेता और मुझे मुसीबत भी नहीं आती, पहले से बचाव कर लेता। ठीक है, अब आप लीजिए सूरह जिन। नहीं, ये गलत है तर्जुमा। ये वही तो मैं कहने जा रहा हूँ। कुफ्फार जब सरकार से पूछने आए तो अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी आप फरमा दीजिए मैं गैब का इल्म नहीं जानता, मतलब ये कि मैं अपनी ज़ाती तौर से नहीं जानता बल्कि अल्लाह की अता से जानता हूँ, और अल्लाह की अता से जानने पर कुरान की आयतें नस से साबित हैं। उसको आप इनकार करेंगे? सूरह जिन की आयत लो, वही तो मैंने कल रात बताया। और आगे का जुमला, अगर मैं गैब जानता तो बहुत सी भलाई जमा कर लेता और मुझे कोई मुसीबत ही नहीं आती। इसका वही तो कह रहा हूँ, अपने तौर से, जाती तौर से। अब आइए आगे देखिए ना, तो उस दूसरे आयत का क्या करेंगे आप? जाती तौर से तो नहीं जानता, वही आने के बाद बताने के बाद तो हर कोई जानता है। आप भी जानते हैं कि कयामत के पहले मेरे भाई जब मशरिक से सूरज निकलेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि हम नबी को इल्म गैब अपने जाती तौर से मानते हैं? तो यही तो सब लोग बोल रहे हैं। ये तो आपने बहतान लगाया। क्या किसी ने ये कहा कि अल्लाह के अता के बगैर कोई नबी इल्म जानता है? हाँ, तो हम भी वही बोल रहे हैं।
تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ किस बात का تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ इसी बात का कि हमारा अकीदा कब दुरुस्त होगा, आप जा सकते हैं। ارے बिना बताए पता है, बिना बताए देखो एक مجھے वाकया- ایک عالم بتا دے، میں کہتا ہوں وہ عالم کافر ہے اگر اس نے کہا کہ اللہ کے عطا کے بغیر نبی جانتا ہے۔ اب ایک عالم بتائے کس نے یہ بتایا؟ آپ نے بہتان لگا رہے سنی علماء کو۔ آپ ایسا بول رہے ہیں عالم لوگ عوام کو، جو عوام ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دوست، عوام کی باتیں عوام کیوں کو لیتے ایسا ہو؟ کلیئر نہیں بولتے، کیوں نہیں بولتے؟ وہی کے ذریعے بتایا جاتا ہے، یہ اللہ کو بتانا چاہیے کہ بھائی نبی پہلے سے کچھ نہیں جانتے تھے، ساری وہی چیزیں بتائے وہی کے ذریعے، تو یہ بتایا جاتا ہے۔ یہ clear بات، یہ clear جواب ہے آپ کا۔ مجھے ایک عالم بتا دو، مستند عالم۔ عالم نہیں، عالم کو اسٹوڈنٹ لوگ گھوم، ارے بھائی شاگردوں کو عالم جیسے گھماتے آپ جاہل ہو ایسے اسٹوڈنٹ جاہل ہوتے ہیں۔ نہیں، نہیں، تو سمجھائیے ہاں تو وہی تو میں سمجھانے آ رہا ہوں۔ تو سمجھیے کہ بھائی اللہ وہی کے ذریعے آپ نے- وہ تو آپ کا ہمارا سیم ایمان، وہ بات نہیں۔ ارے لیکن بنا بتائے پتا تھا تو وہ اللہ بول رہا ہے آپ کو نہیں پتا تھا، ہم بتا رہے ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، جب وہی کے ذریعے آپ مانتے ہیں تو اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، وہی کے ذریعے اب بھی علم ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، اب بھی ہمارے نبی جانتے ہیں یا نہیں وہی کے بعد؟ اللہ کے نبی تو وہی کی بات تو جانے کے نیچرل ہے وہی۔ وہی کے بعد ہر بات جانتے، لیکن اب انتقال کے بعد ان کا انتقال کے بعد تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے رکھا، کہاں رکھا، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے بتی حدث وہ بات کیوں لائے؟ حیات کی بات ہو رہی تھی، حیات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے جب کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی گائے پر اور یہ عمل کے اندر کوئی اپنا ڈسٹربنس بھی نہیں ہے۔ ڈسٹربنس نہیں اس میں۔ یہ آیت تو بھی سنو، کیا اس کو جھٹلاؤ گے؟ سنو، نہیں وہ ہم نے ابھی تک کیا دکھلا دیا ہم نے، وہ تو بتا دو۔ وہ آیت کا مطلب یہ ابھی تک دلیل نہیں پیش کیا آپ نے۔ انہوں نے دیکھو کیوں کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، جس بیس کے ساتھ یہ آیت ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے کہنے کے لیے، اور سورہ یوسف کی آیت بھی پیش کر دی کہ نبی نہیں جانتے، وہ سورہ مجادلہ کی آیت سے ایک نہ زیادہ نہ ایک کم، کلیئرلی کہا نا۔ اس کے بعد جب ہم نے 4-5 آیتیں پیش کی تو دب گئے۔ اب یہ کہنا پڑتا ہے نہیں ہم مانتے ہیں اللہ کی وحی کے بعد جانتے ہیں، پہلے یہ کیوں نہیں بتائے؟ پہلے تو آتے یہ بتایا کہ نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، نبی جانتے ہی نہیں، اور یہ بھی آپ نے کہا کہ جب زندگی میں نہیں جانتے تھے تو اب کیسے جانیں گے؟ اب یہ کہہ رہے ہو کہ زندگی کے بارے میں ہمیں شعور ہی نہیں ہے، تو آپ اپنے اسٹیٹمنٹ پہ رہے گا۔ اب ہمارا بولنے کا مطلب کیا ہے؟ میں بولنے کا مطلب میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک منٹ سنو پہلے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ آتے ہی آپ نے جو سورہ مجادلہ کی آیت پیش کی اس سے آپ نے یہ کہا کہ 3 سے زیادہ چوتھے میں 5واں جو آیت جو بھی ہو آیت کریمہ میں، اس سے کہا کہ ایک زیادہ جانتے مانیں گے تو قرآن کے خلاف، ایک کم جانتے ہیں مانتے تو بھی قرآن کے خلاف، اور یہ نبی کی زندگی میں نازل ہوئی تو زندگی میں بھی نہیں جانتے تھے، اب تو ویسے بھی نہیں جانتے، یہ کہا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی کے بعد جانتے ہیں اور وصال کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں، تو پتہ ہی نہیں تو پہلے کیوں کہا کہ نہیں جانتے تھے؟ آپ کا خود کا اسٹیٹمنٹ ایک نہیں پہلے ہے۔ کہا حیات میں نہیں جانتے تھے، یہ تو ارے کہہ بھائی رہے ہیں، حیات میں نہیں آپ جانتے ریکارڈنگ تھے۔ حیات میں نہیں جانتے ان کو ایک کلپ دے دینا، انہوں نے پہلے کیا کہا اب کیا کہا۔ میرے بھائی پہلے ایک اسٹیٹمنٹ پہ رہو آپ۔ اچھا چلو اس بات کو ایک طرف تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ ابھی بھی قبر شریف میں نبی نہیں سننے پر ایک دلیل آپ نے پیش نہیں کی۔ آپ نے 1 گھنٹہ تقریباً یہاں پیش کر دیا، ابھی بھی وہ آیت نہیں پیش کی کہ جس سے ثابت ہو کہ نبی وصال کے بعد نہیں سن سکتے، ابھی بھی پیش کرو۔ ابھی وہ آیت میں لے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس 3 آدمی چپکے سے بات کریں مدینے نبی کی قبر کے پاس، تو وہ آیت وہاں بھی اپلیکیبل ہے کون سی؟ کہ 3 سرگوشی کر رہے ہیں تو اللہ سن رہا ہے۔ اور ایک منٹ قرآن میں ہے کہ نبی کے وصال کے بعد 3 آدمی، نبی کی زندگی میں قرآن نازل ہو چکا تو قرآن کے بول رہا ہوں۔ بعد، ارے نبی کی زندگی میں قرآن نازل ہو چکا تو وصال کے بعد کی کیوں بات کر رہے ہو؟ دیکھیے مجھے آپ یہ تو جواب مانگ رہے ہیں، میں تو حیات میں نہیں سنتے تھے جبکہ 2-4 کلومیٹر دور تھے اللہ کے نبی۔ آ گئے نا، اور آپ تو حیات میں نہیں سنتے، اب آپ تو ویسے بھی نہیں سن سکتے، 3-4 کلومیٹر بھی نہیں سن سکتے، یہ کہا نا، تو اب کیوں کہا کہ ہمیں اس کا شعور ہی نہیں؟ شعور نہیں، ارے کس عجیب طریقے سی سے بات زندہ ہے ہے، سننے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بات یہ کہتے ہو کہ نہیں جانتے، 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر نہیں جانتے تھے، دوسری بات یہ کہتے ہو کہ اللہ کے بتانے پر سب کچھ جانتے ہیں، تو ایک سب اسٹیٹمنٹ کچھ ہونا یار۔ نہیں، جو اللہ بتایا تو اللہ نے کیا کیا بتایا؟ قرآن میں فرمایا نا، وہی تو میں نے کہا، قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، اور قرآن میں اتنی چیزیں، قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے کہ اس کی تفسیر کرنے کے لیے 7 سمندر کو سیاہی بنا لو، زمین کے تمام درختوں کو قلم بنا لو، پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا اور تمام غیب کا علم ما کان وما یکون، جو کچھ ہونے کا تھا جو کچھ ہونے والا سب سکھا دیا۔ جب سب سکھا دیا آپ کیسے انکار کرتے ہو کہ یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے؟ اچھا علمہ البیان میں
जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है। आपका एतराज है कि क़यामत का इल्म सरकार नहीं जानती, ठीक है। हमारा ये है कि सरकार क़यामत का इल्म अल्लाह ने दिया था, लेकिन लोगों से छुपाने को हुक्म था। नबी को क़यामत का इल्म था। अब दलील सुनिए, अल्लाह ने फरमाया मा कान व मा यकुन, जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है, इल्म अता फरमा दिया। नबी ने भी फरमाया मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे हाथ की हथेली, क़यामत तक जो कुछ होने वाला है सबको देख रहा हूँ जैसे हाथ की हथेली। अब मुझे बताइए, क़यामत के होने वालों में बच्चा कब पैदा होगा, होने वाला है कि नहीं? बारिश कब होगी, होने वाला है कि नहीं? कौन कब मरेगा, होने वाला है कि नहीं? होने वाली जितनी चीजें हो गई, अब बाकी क्या रहा? क्या रहा? होने की तमाम चीजें हो गई, अब तो क़यामत बाकी है। तो जब नबी जानते हैं जो कुछ होने वाला है, मैं जानता हूँ, होने की सब हो गई, तो क़यामत नेक्स्ट है, तो क़यामत का इल्म है तभी तो। समझे मेरी बात? होने की तमाम चीजें जानते हैं, अब तमाम चीजें होने वाली ऑकर्ड हो गई, व्हाट इज नेक्स्ट? दुनिया का खत्म। अब तो नबी वो जानते हैं। इसी के मुतालिक एक और बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब बातें बता दी अल्लाह ने। बता दी, बिल्कुल बता दी। तमाम पैगंबर कितने आए, कम सब कुछ बता दिया। तमाम पैगंबरों के सब बता दिया, अहवाल, सब बता दिया। यानी इसमें 25 या 26 पैगंबरों का जिक्र है, और आए तो कई आए पैगंबर आए, हदीसों में अरे आता है। वही तो मैं कहता हूँ, कितने पैगंबर आए? करीब तकरीबन लाख, सवा लाख। हाँ। चलो, तो ये लाख सबके पैगंबरों के अहवाल अल्लाह के नबी को पता है, बिल्कुल बता दिए। देखिए कुरान की आयत देखिए आप। वही मैं पढ़ा हूँ, ये सब इसीलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। तुम तो सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तो अगर हम तुम्हें दिखा दें कुछ वो चीजें जिसका उन्हें वादा दिया जाता है, या तुम्हें पहले ही वफात दें, बहरहाल उन्हें हमारी तरफ फिरना है। और बेशक हमने तुमसे पहले कितने रसूल भेजे कि जिनमें किसी का अहवाल तुमसे बयान फरमाया और किसी का अहवाल न बयान फरमाया। ठीक है, तो पता है नबी को न बयान फरमाया है अहवाल पैगंबरों का, अच्छा ठीक है। कि जिसका अहवाल बयान फरमाया अल्लाह के नबी जानते। हाँ। यहाँ है कुछ पैगंबरों का हमने आपको वाकया सुनाया और कुछ का न सुनाया, मेरे भाई, और किसी रसूल की को नहीं पहुंचता कि कोई निशानी ले आए बगैर खुदा के हुक्म के। ठीक है। अब तो अब यहाँ ये बात है कि पैगंबरों के अहवाल अल्लाह बोल रहे हैं, हमने आपको बात पैगंबरों का किस्सा नहीं सुनाया। कुरान में जितने पैगंबरों का जिक्र किया उसके हवाल बताए। बता तो जो कुरान में जिक्र नहीं है, अगर आप ये कहते हैं कि उसके अलावा दूसरे नबियों का जिक्र नबी नहीं जानते, अल्लाह फरमा रहे, अल्लाह नहीं सिखाता है। अल्लाह फरमा रहे हैं आपको बास पैगंबरों का अहवाल बताया और बास का अहवाल हमने आपको यानी नहीं कुरान, बताया। यानी कुरान शरीफ में जितने अम्बिया कराम का जिक्र मौजूद है वो अहवाल आपको बता दिए, यानी कुरान की शक्ल में। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि नहीं जानते थे, तो अल्लाह ने जो फरमाया व अल्लमक मा लम तकुन तालम, जो कुछ आप नहीं जानते थे हमने सिखा दिया, उसका मतलब क्या होगा? अल्लाह ने ये फरमाया कि कुरान की तफसीर में सातों समंदर को मतलब स्याही बना लो, यानी हर छोटी बड़ी चीज का जिक्र, खुश्क तर का जिक्र, तो छोटी बड़ी में नबी का जिक्र भी आ गया कि नहीं? हाँ, तो जो बताया खुश्क नबी का तर में हर जिक्र चीज का आया, नबी का अल्लाह का इल्म बता रहा है, अल्लाह इसका ताला मतलब मेरा ये, इल्म नहीं खत्म इसका हुआ। मतलब ये कि वाज़ेह तौर पे कुरान की आयतों से कुछ नबियों के हवाल बताए, हाँ। और बाज आपको इल्हामी तौर पे बता दिए गए, यानी जो सब बता कुरान- दिए। बिल्कुल बता दिए। अल्लाह ये बोल रहे हैं कि बात तो को नहीं वो तो- बताया, अरे भाई, और फिर नहीं हमने बताया। नहीं सुना की शक्ल में जो कुछ सीधी नहीं, बातों को कि जो नबी- कुछ, अरे मेरे भाई वो भी सीधी बात है, जो कुछ नहीं जानते थे, बहुत वक्त करूँ नमाज के लिए, नमाज के लिए बहुत वक्त करूँ। अब जा रहे जाइए, जो कुछ नहीं जानते थे हमने सिखा दिया, उसका मतलब आप क्या करोगे? क्या करोगे? जो कुछ आप नहीं जानते हमने सिखा दिया, क्या करोगे? उसका मतलब की शक्ल में नहीं, क्या दिखा दिया? कुछ नहीं दिखाया आपने। आप ये कुरान को मानते हैं, आला हज़रत को मानते हैं, तो सुन्नी बन जाओ तो